सुरू केलंय प्रीतम. हॅलो, प्रीतम केलं सुरू ना? केलं. परफेक्ट, सुपर, वंडरफुल वंडरफul. So very good morning. So let's get started, friends. I hope the screen is visible now, because this topic is a bit detailed one. That's the reason I think today also we might cover only IGST and place of supply, and tomorrow we'll be starting, because once you understand the place of supply, naturally most of the part, that is export related stuff, you would have already understood. So it becomes very easy for a speaker to cover that part also. So friends, let's quickly first revise what we learned yesterday. Correct? The most important part we learned was that all the transactions which are taking place in India, correct? If you are a person who is registered for GST purposes, then first you are supposed to split your entire turnover into intrastate and interstate, because accordingly only you can decide to pay the taxes. Because if it is intrastate, CGST and SGST; if it is interstate, you are expected to pay IGST. We also discussed that if somebody inadvertently, by mistake, by error, pays a wrong tax, that is IGST, then he is supposed to pay the right tax again, that is CGST and SGST, and he will get the refund of IGST. Practically, if you would have seen or if you would have worked in the field of indirect taxes such as service tax, excise, VAT वगैरह, आपको पता रहेगा how difficult it is to get the refund from the GST authorities. That's the reason it is very critical, very important for all of us to pay appropriate taxes at the right point of time, because GST, similar to excise and service tax law, is again a self-assessed law. That is, you are expected to determine and pay appropriate taxes. The responsibility is cast on you. Then we said, to determine intrastate and interstate, correct? To determine whether a transaction is intrastate or interstate, you need to focus on two important things. One, what is the location of the supplier, and second, what is the place of supply. अगर ये लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों एक ही स्टेट में है तो हम उसको इंट्रास्टेट, विद इन द स्टेट कहते हैं, बराबर है. इफ दे आर इन टू सेपरेट स्टेट, या एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी, या दो यूनियन टेरिटरी के बीच में है, तो उसको हम इंटरस्टेट कहते हैं. इवन हमने देखा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन को भी इंटरस्टेट माना गया है. उसके बाद हमने ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखा, एक्सेप्शन देखा, कि जब सर्विसेज या गुड्स, when they are supplied by or to SEZ, even those transactions are considered to be a interstate transaction. उसके बाद हमने डिस्कस किया कि प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए अलग अलग सेक्शंस है, जैसा सेक्शन 10 है फॉर गुड्स, करेक्ट, 10 and 11, एंड 12, 13 इज फॉर सर्विसेज. तो गुड्स के लिए अलग प्लेस ऑफ सप्लाई की प्रोविजंस है, एंड सर्विसेज के लिए अलग है. तो हमने कल गुड्स रिलेटेड प्लेस ऑफ सप्लाई के जो प्रोविजंस है वो डिस्कस किए. ना प्लेस ऑफ सप्लाई, जब हम गुड्स की बात करते हैं, हमने वहां पर देखा सेक्शन 10(1) जो मेन सेक्शन है, उसके अंदर ABCDE ऐसे करके अलग अलग सब क्लॉजेस है. तो यहाँ पर मेन जो हमने बाइफर्केशन देखा कि गुड्स रिलेटेड जब हम बात करते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई की, टिपिकली जहां पर डिलीवरी ऑफ गुड्स टर्मिनेट हो जाती है, एंड पर्टिकुलरली इन केसेस जहां पर ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व होता है, यानी कि गुड्स A लोकेशन से B लोकेशन पे जा रहे हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि कहां पर गुड्स का डिलीवरी टर्मिनेट हो रहा है, दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. यानी पुणे से अहमदाबाद अगर अपने गुड्स भेजे, प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी अहमदाबाद. उसके बाद हमने देखा कि बेसिकली अगर गुड्स मूव नहीं हो रहे, यानी कि अक्रॉस द काउंटर सेल है, बराबर है, आपकी दुकान में कोई आ रहा है, आप उनको माल बेच रहे हो, अक्रॉस द काउंटर है, गुड्स मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो वहां पर हमने बोला है कि प्लेस ऑफ सप्लाई जहां पर आपने गुड्स का डिलीवरी या हैंड ओवर दे दिया है. उसके बाद हमने एक बिल टू शिप टू करके ट्रांजेक्शन देखा था. तो बिल टू शिप टू ट्रांजेक्शन में कोई बता पाएगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? विल इट बी द लोकेशन वेयर द पर्सन, जो बिल टू का लोकेशन होगा या शिप टू का लोकेशन होगा? बिकॉज बिल टू हो सकता है पुणे है, शिप टू है दिल्ली, तो कौन सा देखना है हमको? विच एवर इज अर्लियर, बराबर है. बिल टू इज इंपॉर्टेंट, करेक्ट. तो बिल इज इंपॉर्टेंट. सो इफ इनके साथ बिल टू शिप टू अगर हमको प्लेस ऑफ सप्लाई देखना है तो बिल टू इंपॉर्टेंट. मुझे लगता है लगभग सभी लोगों ने, अर्पित, विशाल, राज, चिन्मय, महेंद्र, पंकज, करेक्ट, मनाली, रोहन, नीलेश, लगभग सभी लोगों ने परफेक्ट आंसर दिया. इट इज लोकेशन ऑफ बिल टू. सुपर. अभी हम आज डिस्कस करेंगे सर्विसेज रिलेटेड सेक्टर्स का, बिकॉज सेक्शन 10, 11 जो था, बिकॉज 10 के बाद हमने 11 भी देखा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का. उसके बाद आता है सेक्शन 12, जहां पर हम देखेंगे सर्विसेज का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है. सेक्शन 12 जैसा हमने डिस्कस किया, डोमेस्टिक प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में बात करता है, जो मुझे लगता है कि एज कंपेयर टू 13 और 12 में अगर हम कंपेयर करेंगे, 13 ज्यादा क्रिटिकल है, बिकॉज यहाँ पर एक्सपोर्ट रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिफंड आपको मिलेगा कि नहीं, वो ज्यादा आपको समझना जरूरी है. इसके लिए पहले हम सेक्शन 13 देखते हैं
और उसके बाद हम सेक्शन 12 देखते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर हमने कल ये भी एग्जांपल डिस्कस किया था एजेंट का, बराबर है। तो एजेंट को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसको इंटरमीडिएरी कहा जाता है, कि उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सेक्शन 12-13 के कल हमने एग्जाम्पल भी लिए थे। जैसा हमने कहा था कि लोकेशन ऑफ सप्लायर और रिसिपिएंट आपको डिटरमाइन करना है। दोनों अगर इंडिया में है तो सेक्शन 12 एप्लीकेबल होगा। दोनों में से एक जन अगर आउटसाइड इंडिया है, हो सकता है सप्लायर आउटसाइड है या रिसिपिएंट आउटसाइड है, दोनों में से एक जन, तो आपको सेक्शन 13 अप्लाई करना होता है। परफेक्ट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद सेक्शन 13। यहाँ पर सेक्शन 13 में जो सबसे इंपॉर्टेंट सब क्लॉज आता है वो आता है सब क्लॉज 2। सब क्लॉज 2 कहता है कि टिपिकली देयर आर वेरियस अदर सब क्लॉजेस अंडर सेक्शन 13, यानी सेक्शन 3 सब क्लॉज 3 से लेकर 13 तक अलग अलग सब क्लॉजेस है। ये सब क्लॉजेस स्पेसिफिक सब क्लॉजेस है, यानी यहाँ पर स्पेसिफिक सर्विसेज के बारे में गवर्नमेंट ने बताया है। तो यहाँ पर बेसिक रूल है, अगर कोई स्पेसिफिक रूल गवर्नमेंट ने कोई स्पेसिफिक सर्विस के लिए बताया है, जैसे इंटरमीडिएरी सर्विस के लिए एक स्पेसिफिक रूल है या स्पेसिफिक प्रोविजन है सेक्शन 13 सब क्लॉज 8 सब क्लॉज बी, तो वहां पर गवर्नमेंट ने कहा है दैट सब क्लॉज विल ओवरराइड द जनरल सब क्लॉज, बिकॉज जनरल सब क्लॉज जो सब क्लॉज 2 दिया है वो कहता है कि टिपिकली प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, बराबर है। तो रिसिपिएंट ऑफ सर्विस की जगह पर, रिसिपिएंट की जगह पर आपका जो प्लेस ऑफ सप्लाई अदर भी हो सकता है। कब हो सकता है? जब आपके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजन एप्लीकेबल है, और वो स्पेसिफिक प्रोविजन कहां पर है? सेक्शन 13 सब क्लॉज 3 से लेके सेक्शन 13 सब क्लॉज 13 तक, बराबर है। तो यानी कि अगर कोई स्पेसिफिक प्रोविजन आपको एप्लीकेबल नहीं है तो ही जनरल प्रोविजन आपको एप्लीकेबल होगा, दैट इज लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। यानी जो रिसिपिएंट है अपने सर्विस का वही प्लेस ऑफ सप्लाई, आप उसका लोकेशन देख के मान लो, बराबर है। तो जैसा हमने कल एक एग्जांपल लिया था, अगर राकेश के पास कोई यूएस का एक, जैसा हमने बिल गेट्स का एग्जांपल लिया था, तो बिल गेट्स ने एडवाइजरी पूछा मिस्टर राकेश को कि भैया राजेश जी मुझे बताइए कि प्लेस ऑफ सप्लाई मुझे एडवाइजरी बताइए, बराबर है। एडवाइजरी मुझे चाहिए, मेरा और मिलिंडा गेट्स का भी डिवोर्स होने वाला है, तो मुझे कुछ इनहेरिटेंस टैक्स वगैरह कुछ पे करना है क्या यूएस में वगैरह। तो राजेश ने उनको एडवाइस दिया। तो यहाँ पर टिपिकली बिकॉज 13 सब क्लॉज 3 से लेकर 13 सब क्लॉज 13 तक कोई भी स्पेसिफिक सेक्शन में सब क्लॉज में ये एडवाइजरी सर्विस कवर नहीं होता है, इसके लिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सब क्लॉज 2 एप्लीकेबल होगा। एंड अगर सब क्लॉज 2 एप्लीकेबल होगा तो वहां पर जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा वो क्या होगा? लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। और ये एग्जाम्पल में हमने एग्जाम्पल में लिया था मिस्टर बिल गेट्स जो यूएस बेस्ड है। तो अगर मिस्टर बिल गेट्स यूएस बेस्ड है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इज यूएस, तो यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई यूएस हो गया। यानी इंडिया से जो मिस्टर राजेश सर्विस दे रहे हैं एंड लोकेशन इज आउटसाइड इंडिया, तो यहाँ पर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो जाएगा ये, बराबर है। अभी इस ट्रांजेक्शन को टिपिकली आप एक्सपोर्ट करके भी क्वालिफाई कर सकते हो अगर आप बाकी के कंडीशन फुलफिल कर लोगे तो। एंड अगर आप एक्सपोर्ट करके क्वालिफाई करोगे तो आपको जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। उस एस्पेक्ट को हम थोड़ा बाद में देखने वाले हैं, ठीक है, परफेक्ट। तो यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि बहुत बार क्या होता है कि जो आपसे रिसिपिएंट सर्विस ले रहा है उसका आपके पास एड्रेस ही अवेलेबल नहीं है, आपको पता ही नहीं चल रहा है, करेक्ट। आपको किसी ने फोन पे क्वेरी पूछा, पैसा दे दिया, लेकिन आपको उसका एड्रेस ही नहीं पता है। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने कहा है द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि जो सप्लायर ऑफ सर्विस है उसी का लोकेशन। तो अगर आप पुणे बेस्ड हो, आपको कोई इंटरनेशनल पर्सन यूएस से वगैरह कोई कॉल करता है, आपको पैसे भी ट्रांसफर कर देता है, यू आर नॉट सर्टन यूएस है यूके किधर से है, तो आपका लोकेशन जो है वो टिपिकली वही उसी को प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, और वहां पर वो ट्रांजेक्शन आप बोल सकते हो कि इंट्रा स्टेट यानी विद इन द स्टेट क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सेक्शन 13 सब क्लॉज 2 जो जेनरिक प्रोविजन है, यानी रिसिपिएंट का लोकेशन इज इक्वल टू प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन उसके बाद में कुछ स्पेसिफिक सब क्लॉजेस आते हैं और उसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इंपॉर्टेंट चीजें जो आप सबको समझनी पड़ेगी। टिपिकली जो सबसे पहला सब क्लॉज आता है वो आता है 13 सब क्लॉज 3। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट सर्विसेज कवर की जाती है या कवर की गई है गवर्नमेंट ने, सब क्लॉज ए और सब क्लॉज बी में। सब क्लॉज ए में जो गुड्स को हम रिपेयर करते हैं, बराबर है, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई दिया है। एंड सब क्लॉज बी में 13(3) सब क्लॉज बी में पर्सन्स को जो हम रिपेयर करते हैं यानी कि ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विसेज वगैरह, उसको गवर्नमेंट ने कवर किया है। तो लेट अस अंडरस्टैंड 13 सब क्लॉज 3 एंड 13 सब क्लॉज 3A एंड सब क्लॉज बी। तो पहले हम ए का एग्जांपल या पहले ए प्रोविजन क्या कहता है 13(3)A वो समझते हैं। सर्विसेज सप्लाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स
तो जब भी आप कोई गुड्स के ऊपर कोई सर्विसेज दे रहे हो, जैसा आपके पास कोई मशीनरी आता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, बराबर है, तो मिस्टर बिल गेट्स अगर इंडिया में आते हैं, उनका लैपटॉप खराब हो चुका है, तो वो लैपटॉप किसी को रिपेयर के लिए उन्होंने दे दिया है। ऑब्वियसली वो तो रिप्लेस कर लेंगे लैपटॉप, वो अलग बात है, लेकिन अज्यूम करते हैं कि उनका बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है उसमें, तो उन्होंने रिपेयर मेंटेनेंस के लिए उसको एक दुकानदार को दिया है, और वो दुकानदार वो लैपटॉप को खोल रहा है, ओपन करके उसमें कुछ पार्ट्स वगैरह चेंज कर रहा है, उसको ठीक ठाक कर रहा है, जो भी उसका बैटरी अगर कुछ गया है तो उसको ठीक कर रहा है, बराबर है। तो वो सब करके उसने लैपटॉप वापस दे दिया और कहा कि भैया इसका जो मेरा इनवॉइस है, जो मेरा ट्रांजेक्शन है, जो मेरा बिल है, वो 10,000 रुपीज हुआ है। तो यहाँ पर अगर मिस्टर बिल गेट्स कहेंगे भैया मैं तो यूएस से आया हूँ, करेक्ट, तो यहाँ मुझे जीएसटी मत लगाओ, बिकॉज रिसिपिएंट मैं रिसिपिएंट हूँ। मैं रिसिपिएंट कहाँ का हूँ? अमेरिका में रहता हूँ मैं तो ये टेम्परेरी विजिट के लिए आया था, कुछ काम के लिए, तो मेरा जो लैपटॉप आपने रिपेयर किया उसके ऊपर जीएसटी मत लगाओ। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि जब आप गुड्स के रिस्पेक्ट में सर्विसेज देते हो तो वहां रिसिपिएंट का क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं होगा, बराबर है। तो वहां पर क्या होगा कि जहां पर गुड्स अवेलेबल किए गए, जहां पर गुड्स है फिजिकली, करेक्ट, वेयर इज द मींस वॉट एवर इज द लोकेशन ऑफ गुड्स, दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, बिकॉज जहां लोकेशन ऑफ गुड्स का है वहीं पर आप गुड्स के ऊपर सर्विसेज परफॉर्म करने वाले हो, बराबर है। तो रिपेयर मेंटेनेंस के लिए आपको गुड्स देने पड़ते हैं और वो गुड्स के ऊपर सर्विसेज परफॉर्म की जाती है। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि जहां आप परफॉर्म कर रहे हो सर्विसेज, वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, यानी प्रैक्टिकली प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी इंडिया। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया हुआ, ये एग्जांपल में मिस्टर बिल गेट्स का जो लैपटॉप रिपेयर किया, तो उसके केस में जीएसटी एप्लीकेबल होगा क्या नहीं होगा? कैन एनीबॉडी टेल? बिकॉज जीएसटी एप्लीकेबल कब नहीं होता है? जब बेसिकली when it is not applicable, it is not applicable only when the place of supply is located outside India। तो अभी ये जो एग्जांपल है जहां पर रिपेयर मेंटेनेंस इंडिया में हो रहा है लैपटॉप का, तो यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा क्या? आंसर इज यस, परफेक्ट। तो मुझे लगता है काफी सारे लोगों ने, चिन्मय, उमा, नीलेश, प्रवीण, जिनल, करेक्ट, almost all of you have said that it is applicable and you are right, tax would be applicable because इसको एक्सपोर्ट नहीं माना जाएगा, बिकॉज प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में ही उसका होगा। अभी बहुत बार आपने एक एनीडेस्क करके सॉफ्टवेयर सुना है, किसको पता है एनीडेस्क करके सॉफ्टवेयर? एनीबॉडी नोज एनीडेस्क करके सॉफ्टवेयर? उसका काम क्या है, कोई बता सकता है? एनीडेस्क सॉफ्टवेयर का काम क्या है, क्या करते हैं उसके साथ? तो दूसरे के लैपटॉप का, दूसरे के कंप्यूटर का स्क्रीन शेयरिंग करके रिमोट लॉगिन करते हैं। सुपर, परफेक्ट, एकदम बराबर है। तो यहाँ पर होता क्या है कि जब आप रिमोटली कनेक्ट करते हो तो बहुत बार इंडिया से अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर से जो बग आइडेंटिफाई करके उसको रिजॉल्व करते हैं, बराबर है, स्क्रीन शेयरिंग वगैरह करके जो भी रहेगा, बराबर है। तो दूसरे के लैपटॉप में आप लॉगिन करते हो यहाँ से, एंड उसका जो बग है उसको एड्रेस करते हो। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला है कि भैया ये प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, ये क्वेश्चन आएगा ना, बिकॉज इंडिया में पर्सन बैठा है, अमेरिका में लैपटॉप है, लैपटॉप इंडिया में आया नहीं, और वो यहाँ से बैठ के उसका लैपटॉप ठीक कर रहा है, उसमें कोई बग आया है उसको एड्रेस कर रहा है, कोई वायरस आया है उसको रिमूव कर रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि भैया ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से अगर आप सर्विसेज दे रहे हो तो वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? बिकॉज सर्विसेज परफॉर्म कहाँ पर की जा रही है? परफॉर्म आप इंडिया में बैठे हो सकता है हिंजेवाड़ी में आपका ऑफिस है, हिंजेवाड़ी से आप परफॉर्म कर रहे हो सर्विस, लेकिन लैपटॉप कहाँ पर लोकेटेड है? अमेरिका में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक प्रोविजन यहाँ पर डाला है। गवर्नमेंट ने कहा है कि सर्विसेज प्रोवाइडेड फ्रॉम रिमोट लोकेशन बाय वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स अगर है तो बेसिकली लोकेशन वेयर द गुड्स आर सिचुएटेड एट ड टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। यानी ये एग्जांपल में हमने कहा कि अमेरिका में, यूएस में अगर लैपटॉप सिचुएटेड है, डेस्कटॉप सिचुएटेड है, यहाँ रिमोट डेस्क से, एनी डेस्क से अगर आप वो एप्लीकेशन से उसका डिबगिंग कर रहे हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी यूएस। एम आई क्लियर? परफेक्ट। तो यहाँ पर आप सबको सुपर, नीलेश, स्वाति, यू आर राइट, द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी आउटसाइड इंडिया। उसके बाद इंडिया में सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपेयर मेंटेनेंस का सर्विस दिया जाता है, एंड वो सर्विस है बेसिकली रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग वेरियस शिप्स, वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट। तो इंडिया में ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, ग्लोबली अक्रॉस द वर्ल्ड से अलग अलग शिप्स, जहाज वगैरह इंडिया में आते हैं। किसके लिए आते हैं? रिपेयर मेंटेनेंस पर्पज के लिए। एयरक्राफ्ट इंडिया में आते हैं किसके लिए? रिपेयर मेंटेनेंस पर्पज के लिए। तो आपको पता है जैसा वर्ल्ड का इंटरनेशनल अगर कोई एयरपोर्ट है, सबसे बड़ा एयरपोर्ट या जिसको ग्लोबल हब कहा जाता है, वन ऑफ द
बिगेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, कोई बता पाएगा? वर्ल्ड का सबसे बिजी एयरपोर्ट बोल सकते हो, बड़ा एयरपोर्ट बोल सकते हो, जो इंडिया के एकदम पास में है, 3 आवर्स जर्नी पे, कौन सा है? करेक्ट, दुबई एयरपोर्ट है, बराबर है। बाकी के भी एयरपोर्ट है, काफी बिजी एयरपोर्ट है अक्रॉस द वर्ल्ड, लेकिन दुबई एयरपोर्ट को काफी उसके बारे में माना जाता है। लेकिन दुबई 3 आवर्स जर्नी है यहाँ से, बराबर, फ्लाइट से। लेकिन फिर भी वहां पर रिपेयर मेंटेनेंस नहीं होता है जहाज का, बिकॉज फ्लाइट जैसा आपका कार रहेगा, टू व्हीलर रहेगा, करेक्ट, जो भी कार है, जो भी टू व्हीलर है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि उनको रिपेयर मेंटेनेंस लगना ही है। तो वैसे ही प्लेन है, शिप्स है, उनको रिपेयर मेंटेनेंस लगना ही है। तो इंडिया में काफी सारे पोर्ट्स है, काफी सारे लोकेशन है जहां पर एयरपोर्ट जो है उसके आसपास में फ्लाइट्स का, यानी कि जो एरोप्लेन है, जहाज यानी शिप्स का मेजर रिपेयर मेंटेनेंस होता है। एंड इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का इंडस्ट्री है ये, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, बराबर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ जाता है कि बहुत सारे शिप्स इंडिया में आते हैं, प्लेन इंडिया में आ रहे हैं, और उसके ऊपर रिपेयर मेंटेनेंस हो रहा है। तो अगर आप सेक्शन 13 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज ए पढ़ेंगे तो जीएसटी एप्लीकेबल होगा कि नहीं, बताइए आप मुझे। सर्विसेज सप्लाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स विच आर फिजिकली मेड अवेलेबल। आप जहाज का यानी कि शिप का, एरोप्लेन का रिपेयर मेंटेनेंस कर पाओगे क्या विदाउट दैट प्लेन बीइंग अवेलेबल? नहीं। तो वो जहाज इंडिया में आता है, वो शिप इंडिया में आ रहा है, वो प्लेन इंडिया में आ रहा है, और उसके बाद उसके ऊपर रिपेयर मेंटेनेंस हो रहा है। तो लोकेशन वेयर सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म वुड बी इंडिया, तो उसके ऊपर 18 का जीएसटी आप लगा दोगे, बराबर है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भैया अगर ऐसा हो जाएगा तो जो 100 रुपए का खर्चा है रिपेयर मेंटेनेंस का, वो बढ़ के 118 हो जाएगा। एंड जो जहाज है वो बाहर से इंडिया में आ रहे हैं, उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट पे मिलेगा क्या? कैन एनीबडी टेल मी वेदर इनपुट टैक्स क्रेडिट विल बी अवेलेबल टू द प्लेन्स? बिकॉज वो इंडिया में रजिस्टर्ड ही नहीं है, वो बाहर से आ रहे हैं, बराबर है। इफ दे आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया देन प्रैक्टिकली दे वुड नॉट बी इन अ पोजीशन टू क्लेम क्रेडिट। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि एक केस में स्पेसिफिकली एक प्रोविजन ऐड किया है, वहां बोला है सर्विसेज सप्लाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स टेम्पररीली इंपोर्टेड इन इंडिया फॉर रिपेयर्स और एनी अदर ट्रीटमेंट और प्रोसेस। तो बहुत बार क्या होता है कि रिपेयर्स के बाद वर्ड आता है मेंटेनेंस। तो गवर्नमेंट ने बोला रहता है सिर्फ रिपेयर पर्पज के लिए, तो जीएसटी ऑफिसर बोलता है मेंटेनेंस इसमें वर्ड कवर नहीं है, तो हम टैक्स लगा देंगे। इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा और एनी अदर ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस। ट्रीटमेंट यानी क्या कि बहुत बार कुछ पार्ट्स रहते हैं उनको सिर्फ हीट ट्रीटमेंट देना होता है, कुछ प्रोसेसेस रहते हैं कि उस पर जंग वगैरह ना लगे, उसके लिए कोई प्रोसेस के थ्रू गुजारते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि भैया कोई भी गुड्स इंडिया में टेम्पररी पर्पज के लिए आ रहे हैं, सिर्फ रिपेयर्स के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, प्रोसेस के लिए, जीएसटी विल नॉट बी एप्लीकेबल। लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ऐड कर दिया कि भैया आफ्टर रिपेयर ये गुड्स इंडिया में नहीं यूज होने चाहिए, बराबर है, यानी वो वापस चले जाने तो ही आपको ये बेनिफिट मिलेगा। लेकिन बहुत बार यहाँ पर एक प्रैक्टिकल इश्यू आ गया। प्रैक्टिकल इश्यू क्या आ गया? प्लेन इंडिया में आया, बराबर है, तो बहुत बार एयरलाइन इंडस्ट्री क्या करता है, जैसा कतर एयरवेज है, उनका प्लेन इंडिया में आया तो उनको लगता है अभी पूना में या मुंबई में वो प्लेन लैंड किया, उसका नेक्स्ट फ्लाइट वापस कतर जाने का 2 दिन बाद है। तो बोलेगा यार करना क्या है, तो क्या बैठे बैठे करे कुछ कहे, वो है ना, करना क्या है, करते हैं कुछ काम। तो वैसा बोलते चलो करते हैं कुछ काम, हम रिपेयर कर लेते हैं, अभी 2 दिन खाली बैठे हैं तो फ्लाइट, बराबर है, तो 2 दिन में रिपेयर करवा लेते हैं। अभी वो 2 दिन का रिपेयर समझो 1 दिन में ठीक हो गया, अभी और 1 दिन उसके पास बचा है। तो बोलता है अभी अब मेरा जो फ्लाइट है वो कतर जो वापस मुझे जाना है, आज मैं बॉम्बे एयरपोर्ट पे हूँ, मेरा फ्लाइट कल दिल्ली एयरपोर्ट से, एंड दिल्ली से मुझे कतर वापस जाना है। तो पायलट बोलता है मैं एक जो ट्रिप है मैं शेड्यूल कर लेता हूँ, ट्रिप कहाँ से, बॉम्बे से दिल्ली, तो डोमेस्टिक में ट्रिप कर लेता हूँ ताकि जो मेरे पास दिन है वो भी यूटिलाइज हो जाए, कुछ पैसा भी आ जाएगा, करेक्ट, दैट इज हाउ दे मैनेज द कॉस्ट। तो उन्होंने बोला कि चलो मैं ट्रिप अभी रिपेयर हो गया और उसके बाद वो ट्रिप कहाँ से कर लिया, बॉम्बे से दिल्ली। तो यहाँ पर ये कंडीशन वायलेट हो जाएगा, आफ्टर रिपेयर दे आर एक्सपोर्टेड विदाउट बीइंग पुट टू यूज। तो अगर पुट टू यूज इंडिया में हो गया तो प्रैक्टिकली यहाँ पर चले जाएगा, यानी कि कंडीशन फुलफिल नहीं किया तो 18 का जीएसटी आ जाएगा। तो गवर्नमेंट ने बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन स्पेसिफिकली बोला है कि जो भी रहेगा सप्लाई मेंटेनेंस जो रहेगा वहां पर रिपेयर ओवरऑल सर्विसेज जो भी रहेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ एयरक्राफ्ट इंजन एंड एयरक्राफ्ट कंपोनेंट एंड पार्ट सप्लाई टू पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस अगर रहेगा तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी रिसिपिएंट लोकेशन। भले आपने उसको पुट टू यूज किया तो भी चलेगा, बिकॉज प्रैक्टिकली पुट टू यूज कभी कभी होता है, टेस्टिंग पर्पज के लिए होगा कि भैया प्लेन बराबर उड़ रहा है कि नहीं, 2-3 बार टेस्ट करते हैं रिपेयर मेंटेनेंस के बाद,
करेक्ट। तो ये डाउट ना आ जाए कि उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी ना आ जाए, इसके लिए गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली ये एक्टिविटी को कहा है कि दैट दिस विल कंटिन्यू टू क्वालिफाई एज द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड क्वालिफाई एज रिसिपिएंट लोकेशन, बराबर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्लॉज है, जिसकी वजह से इंडिया कंटिन्यूज टू बी रिपेयर एंड मेंटेनेंस हब फॉर मोस्ट ऑफ द एरोप्लेन एंड शिप्स अक्रॉस द वर्ल्ड। और ये इंडस्ट्री बहुत बड़ा है, इसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली इसके लिए कुछ क्लैरिफिकेशन या प्रोविजन लाया है। सिमिलरली और एक इंडस्ट्री है जो बहुत बड़ा है, जो R&D का काम करता है फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए। तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में क्या होता है कि आपको काफी सारा R&D करना पड़ता है, और R&D के लिए टिपिकली क्लिनिकल ट्रायल करने पड़ते हैं। क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए आपको ह्यूमन चाहिए होते हैं, और ह्यूमन या जो टेस्ट जो चीज या जो दवाई की टेस्ट कर रहे हैं आपको इंडिया में होता है। तो अगेन अगर आप कहोगे कि इंडिया में अगर प्लेस ऑफ सप्लाई है तो टैक्स आ जाएगा, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर भी बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन स्पेसिफिकली कर दिया है कि भैया यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया ही प्रैक्टिकली रहेगा। तो ये मुझे लगता है कुछ कंसेशन दिए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू बाय वे ऑफ स्पेसिफिकली इंट्रोड्यूसिंग सर्टन प्रोविजो और बाय वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग सर्टन नोटिफिकेशन। तो ये हो गया आपका सेक्शन 13 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज ए। अभी आता है 13 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज बी। तो 13 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज बी में क्या आता है, सर्विसेज सप्लाइड टू एन इंडिविजुअल। तो जब इंडिविजुअल को सर्विस दी जाती है, तो जैसे हमने देखा इंडिविजुअल यानी ये पर्सन, बराबर है, जिसने ब्यूटी पार्लर सर्विस लिया है। तो जब इंडिविजुअल से ब्यूटी पार्लर सर्विस लेता है, कोई दूसरा फिजिकल ट्रीटमेंट लेता है, बराबर है, तो वो जो भी सर्विसेज ले रहा है इन द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ दैट पर्सन, देन द प्लेस ऑफ सप्लाई इन सच केसेस वुड बी द लोकेशन, करेक्ट, द लोकेशन वेयर द सर्विस इज एक्चुअली परफॉर्म। तो सिमिलर टू गुड्स, जहां पर्सन के ऊपर भी कोई सर्विस दिया जा रहा है, वहां पर भी बोला है गवर्नमेंट ने परफॉर्मेंस जहां हो रहा है वही प्लेस ऑफ सप्लाई है। तो कौन कौन सा सर्विसेज आप बोल सकते हो, कोई बॉडीगार्ड दिया, तो बिल गेट्स के लिए कोई बॉडीगार्ड चाहिए थे, बराबर है, तो बॉडीगार्ड दिया, तो बिल गेट्स नहीं बोल सकता मैं तो बाहर से आया हूं तो मुझे जीएसटी मत लगाओ। तो बॉडीगार्ड जो है वो फिजिकल उसके साथ में रहेगा ना, बराबर है, फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है वहां पर, तभी तो बॉडीगार्ड काम करेगा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी द प्लेस वेयर इट इज परफॉर्म, यानी दिल्ली में बॉडीगार्ड सर्विस दिया, पूना में दिया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी दैट सिटी, दैट लोकेशन जहां पर ये परफॉर्म किया गया। सिमिलरली ब्यूटी ट्रीटमेंट में भी एग्जैक्टली सेम। So whether the service is given in respect of goods or whether it is given in respect of services, typically the place of supply would be location where the service is performed, यानी यहाँ परफॉर्मेंस जरूरी है। तो फ्रेंड्स टिपिकली जैसे हमने देखा कि जब सर्विसेज की बात आती है, तो आपने अभी तक डिस्कस जो हमने किया उसमें से आपको समझा रहेगा कि अलग अलग गवर्नमेंट प्रॉक्सी रूल्स बना रहा है। प्रॉक्सी रूल्स यानी कि आप गवर्नमेंट को आपको बताना है कि भैया प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो ये प्लेस ऑफ सप्लाई अलग अलग सर्विस के लिए गवर्नमेंट आपको बता रहा है। तो एक गवर्नमेंट ने रिपेयर मेंटेनेंस के लिए बताया, एक इंडिविजुअल का रिपेयर मेंटेनेंस के लिए बता दिया। तो सिमिलरली और भी कुछ कैटेगरीज है, और भी कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज है जहां पर गवर्नमेंट ने आपको प्लेस ऑफ सप्लाई बताया है, जैसा इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में जाने के पहले मैं आपको और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूँ। आपके सामने सेक्शन 13 सब क्लास 3A है, बराबर है। तो यहाँ पर आप मुझे बताइए, अगर अगर आपको किसी ने कहा है कि अमेरिका के एक लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, बराबर है, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, तो बताइए सॉफ्टवेयर को अगर इंस्टॉल करना है वहां पर, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। आप इंडिया में बैठे हो, पुणे से आपने अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया और आपने चार्ज कर लिया उसको $100, तो आप जीएसटी लगाओगे कि नहीं लगाओगे। प्लेस ऑफ सप्लाई, सतीश जी सेइंग इंडिया, you are saying, स्वाजी saying, तो इंडिया या अमेरिका, इतना बताइए। ऑलमोस्ट यूएसए, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू आर सेइंग यूएसए, करेक्ट। some other answers are also there. No GST place of supply is America. Uma, Suesh, दीपाली अमेरिका, नेहा अमेरिका, विजय अमेरिका। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स आप सब लोग ने एक पॉइंट मिस कर दिया। आपने सबने एक पॉइंट मिस कर दिया। ये लैंग्वेज क्या है, सर्विस सप्लाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स। आपने किसी ने पूछा नहीं भैया जो सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किया वो गुड्स है क्या सर्विस है। जो सॉफ्टवेयर जो आपने इंस्टॉल किया आपका एक्टिविटी सर्विस है, बराबर है, तो इट इज अ सर्विस सप्लाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स, बराबर है, सर्विस सप्लाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स।
जो आपका सर्विस आपने दिया, इज इट इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज? ये किसी ने पूछा ही नहीं, करेक्ट? तो यहाँ पर ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है कि जो आप समझ रहे हो कि भैया इंस्टॉलेशन सर्विस है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो आपने काम किया, बराबर है, जो आपने काम किया वो गुड्स है, यानी कि आपने गुड्स के ऊपर सर्विस दिया इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स और सर्विस के ऊपर, या सॉफ्टवेयर ये गुड्स आप मानोगे, सर्विस मानोगे, क्या आप ये देखोगे कि मैंने जो सर्विस दिया इट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स, यानी इट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ लैपटॉप, बिकॉज सॉफ्टवेयर कहां पर आप इंस्टॉल कर रहे हो, सॉफ्टवेयर आप कहां पर इंस्टॉल कर रहे हो, यू आर इंस्टॉलिंग दैट इन अ लैपटॉप, बराबर है? तो इस तरह के प्रैक्टिकल जब भी आपको कोई क्वेरी आएगा, कोई सिचुएशन आएगा, you need to deep think, you need to understand the exact problem and then you will have to provide a solution. You should not immediately jump, हाँ मुझे तो पता है, मुझे सब आता है, मुझे सब आता है करके, करेक्ट? सेक्शन 13(3)(a) में ये कवर्ड है, एक्सपोर्ट हो जाएगा या प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड हो जाएगा, नो. Try to understand the facts of the case very clearly and then come out with appropriate answer. बराबर है? यहाँ पर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि भैया ये इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू मैं कोई सर्विस दे रहा हूँ क्या, बराबर है? जो हमने एक्टिविटी अगर हमने बात किया, हो सकता है कि इंडिया से कोई अगर पर्सन यहाँ से जा रहा है, वहां अगर उसने इंस्टॉल करके दिया तो फिजिकली, या इंडिया से किसी पर्सन ने बोला कि भैया उधर अमेरिका में कोई उसका एक सर्विस प्रोवाइडर, उसको बोला कि तू वहां पर जा और इंस्टॉल करके आ, यहाँ से पर्सन फ्लाई नहीं करेगा, वहां से वहां मैनेज कर लेंगे, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या क्या अलग अलग डायनामिक्स है ये ट्रांजैक्शन के, बराबर है? कि वेयर इज द एग्जैक्ट लोकेशन, कि who is providing the service, who is performing, what is the means, what is the mechanism, इलेक्ट्रॉनिक दे रहे हो, फिजिकल दे रहे हो, बराबर है? वो जो सॉफ्टवेयर वो रेडी सॉफ्टवेयर है, रेडी टू यूज है, प्री पैकेज है कि नहीं है? तो ये सब चीजें के ऊपर आपका आंसर डिटरमाइन होने वाला है, बराबर है? सो प्लेस ऑफ सप्लाई वैसा बहुत इजी लगता है, एंड बहुत बार हम फैक्ट समझते हैं वेरी क्विकली एंड वी ट्राई टू कम आउट विद आंसर वेरी क्विकली, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होगा आपके पास कि आप हर बार राइट आंसर के पास पहुंच जाए बाय फॉलोइंग अ क्विक मेथोडोलॉजी. इसके लिए बेटर यही होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे ये टाइप के सिनेरियोज में, एंड देन यू शुड ट्राई टू कम आउट विद आंसर. परफेक्ट. चलो अभी हम आगे बढ़ जाते हैं. तो नेक्स्ट प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट सब क्लॉज है वो है सब क्लॉज 4 विच टॉक्स अबाउट इमूवेबल प्रॉपर्टी. तो बेसिकली ये क्लॉज क्यों डाला मैं आपको बताता हूँ. अगर बिल गेट्स इंडिया में आते हैं और कहते हैं कि यार मुझे एक बिल्डिंग, पूरा कमर्शियल बिल्डिंग प्रीमाइसेस मुझे किराए पे चाहिए, एंटायर बिल्डिंग में साल भर ये एक बिल्डिंग में बुक करूंगा और उधर ही मेरा ऑफिस खोलूंगा, मेरे पास 100 लोग काम करने वाले, एंटायर बिल्डिंग आई वांट टू टेक ऑन रेंट. तो अगर हमने यहाँ पर रिसिपिएंट का क्राइटेरिया लगा दिया, तो बिल्डिंग कहाँ पर है? बैंगलोर में, बराबर है? बिल्डिंग बैंगलोर में है, रिसिपिएंट कहाँ पर है? वो अमेरिका वाला है, वो बिल गेट्स है, बराबर है? ही इज फ्रॉम यूएस. So he is taking a property on entire property on rent, commercial property पूरा रेंट पे ले रहा है, and उसका पर मंथ रेंट है समझो 10 लाख रुपीज, and he is saying कि you don't charge me GST. Why? Because I am a recipient who is located outside India. तो 13 सब क्लास 2 में लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई. मैं तो अमेरिका में रहता हूँ, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया हो गया, मुझे GST मत चार्ज करो. तो गवर्नमेंट ने कहा है कि यहाँ पर 13(2) नहीं लगेगा, 13 सब क्लास 4 लगेगा. तो 13 सब क्लास 4 क्या कहता है? 13 सब क्लास 4 कहता है कि भैया कुछ सर्विसेज है विच आर डायरेक्टली इन रिलेशन टू अ इमूवेबल प्रॉपर्टी. तो डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन कौन सी सर्विसेज है? टिपिकली सर्विसेज ऑफ रियल एस्टेट एजेंट, सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट. कौन से टाइप के एक्सपर्ट? स्ट्रक्चरल एक्सपर्ट होते हैं अलग अलग बिल्डिंग के, कि भैया बिल्डिंग कितना दिन रुकेगा, टिकेगा कि नहीं टिकेगा, उसको कोई और आपको स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़ेंगे क्या, बराबर है? स्ट्रक्चरल एक्सपर्ट वगैरह, दे विल कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ एक्सपर्ट. देन ग्रांट ऑफ राइट टू यूज इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे हमने रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बोला, क्या आपने किराए पे दे दिया पूरा बिल्डिंग, दैट इज अ सर्विस इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी. सिमिलरली आपने कोई होटल में अगर आप रुके, बराबर है, 5 स्टार 3 स्टार 2 स्टार ओयो, बराबर है, कोई भी होटल वगैरह में अगर आप रुके, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी द लोकेशन ऑफ दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी. यानी गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विस है डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. यहां पर आपने ये इग्नोर करना है. किस चीज को इग्नोर करना है? आपने इग्नोर करना है कि बेसिकली रिसिपिएंट कहाँ का है, बिकॉज आपको यहाँ पर फोकस किस पे देना है
यू हैव टू गिव फोकस, यू हैव टू गिव अटेंशन टुवर्ड्स इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी वही प्लेस ऑफ सप्लाई, यानी प्लेस ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इवन सर्विसेज ऑफ आर्किटेक्ट है वो डायरेक्टली रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी है, बराबर है। इंजीनियर्स है, इंटीरियर डेकोरेटर्स है, इवन जब कंस्ट्रक्शन यानी कि बिल्डिंग बनाने का काम चल रहा है, जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सर्विसेज है, वहां कोऑर्डिनेशन का काम हो सकता है, बराबर है, कैरिंग आउट दैट कंस्ट्रक्शन वर्क हो सकता है। ये सब सर्विसेज का जो काम रहेगा, इसका प्लेस ऑफ सप्लाई जो रहेगा, इट वुड बी लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो मैं अभी आपको एक एग्जांपल पूछता हूँ, ये आपको एक केस सिनेरियो देता हूँ, आप बताइए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। एक इंडियन आर्किटेक्ट है मिस्टर ए, जिसको दुबई के एक शेख ने उनको पूछा है कि भैया मुझे दुबई में बहुत बड़ा होटल बनाना है, बराबर है, बहुत ऊंचा होटल बनाना है और बहुत सुपर होटल बनाना है, उसका डिजाइन मुझे बना के दो, उसका डिजाइन मुझे बना के दो। तो प्लेस ऑफ सप्लाई ये केस में जो मैंने आपको एग्जांपल पूछा, वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? आर्किटेक्ट इंडिया में है, वो जो दुबई का शेख है वो दुबई में बैठा है, वो बोल रहा है कि भैया मुझे दुबई में कोई बिल्डिंग बनाना है, इमूवेबल प्रॉपर्टी बनाना है, करेक्ट। तो प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पर ऑलमोस्ट मिस्टर सुरेश, स्वाति, करेक्ट, देन राज, ऑल ऑफ यू आर राइट, अर्पित, महेश, सुरेश यू आर राइट, द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पर और एक बात आपने मिस कर दिया, लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में यहाँ पर लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बना है क्या? अभी तक इमूवेबल प्रॉपर्टी बनी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी which is existing or even intended to be located, and not only immovable property which is located but also intended to be located, यानी जब वो डिजाइन यूज किया जाएगा वो दुबई में यूज होने वाला आर्किटेक्ट का डिजाइन जो है, बराबर है। तो इंटेंडेड जो भी है आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी जहाँ आने वाला है, तो वो भी प्लेस ऑफ सप्लाई में कवर हो जाएगा, लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। और राइट सतीश, अयोध्या, तो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू आर राइट, द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी इमूवेबल प्रॉपर्टी का लोकेशन। इवन अगर आप देखते हो कि अगर आप कोई होटल में जाकर रुकते हो, तो आप पैंडेमिक अगर अज्यूम करते हैं अक्टूबर दिसंबर में खत्म हो गया, तो आपने सबने कहा चलो अभी गोवा जाते हैं घूमने के लिए, आप ताज होटल गोवा में रुके हो, तो ताज में आप गए और आपने बोला कि भैया कितना बिल हुआ, तो उसने बोला 10,000 रुपीज सर, एक दिन का आपका चार्ज था, तो ये 10,000 रुपीज प्लस जीएसटी। तो आपने बोला कि सर मैं जो हूँ मैं पुणे से आया हूँ, तो मुझे आप आईजीएसटी लगा के दो, बराबर है। तो ये एग्जांपल में वो इंटरस्टेट माना जाएगा क्या ट्रांजैक्शन? आप पुणे से हो, होटल गोवा का है, बराबर है, तो आईजीएसटी आएगा क्या? इंटरस्टेट उसको माना जाएगा। सेक्शन 13 में कौन सा क्लॉज कवर होगा? 13 का ये सब क्लॉज 4 कवर अप्लीकेबल हो जाएगा क्या? ये सर नो? 13(4) अप्लीकेबल है? नहीं, सतीश जी कह रहे 13(4) है। एनीबडी एल्स? 13(4) अप्लीकेबल हो जाएगा? ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू आर सेइंग नो, व्हाई नो? कोई बता सकता है 13(4) क्यों नहीं? यू आर सेइंग प्लेस ऑफ सप्लाई विद इन स्टेट, मैं 13(4) की बात कर रहा हूँ। 13(4) अप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? हाँ ना, आंसर आप बोल रहे हो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? लेकिन यहां पर किसी ने भी प्रॉपर्टी गोवा में बराबर है, आप पुणे से वो भी बराबर है, लेकिन फ्रेंड्स आप एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भूल गए। कोई बता सकता है कौन सा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भूल गए? कोई पर्सनल यूज कर रहा है? सेक्शन 13 आपने किसी ने भी ये क्यों पॉइंट नहीं आइडेंटिफाई किया? सेक्शन 13 एप्लीकेबल कब होता है? सेक्शन 13 का बेसिक्स फिर से आप देखिए, सेक्शन 13 एप्लीकेबल कब होता है? सेक्शन 13 एप्लीकेबल कब होता है? आप सब इमीडिएटली क्वेश्चन पूछने के बाद आंसर के ऊपर जंप कर रहे हो, लेकिन सेक्शन 13 एप्लीकेबल कब होता है? प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर और रिसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया। परफेक्ट अरविंद, बराबर है। यहाँ पर दोनों इंडिया में है ना, तो सेक्शन 13 एप्लीकेबल होगा ही नहीं। यहाँ पर कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा? यहाँ पर सेक्शन कौन सा एप्लीकेबल होगा? यहाँ सेक्शन 13 एप्लीकेबल नहीं होगा, सेक्शन 12 देखना पड़ेगा, जो हमने अभी तक डिस्कस किया नहीं है, बराबर है। तो बहुत बार जब आप सेक्शन 12 और 13 प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन कर रहे हो एग्जाम के लिए, क्लाइंट के लिए, कहीं पर भी, यहाँ पर ये याद रखना पड़ेगा आपको, प्रैक्टिकली सेक्शन 12 देखना है क्या 13?
बहुत बार बच्चे मिस कर जाते हैं, इमीडिएटली जंप कर जाते हैं आंसर के ऊपर, बराबर है। सो नेवर मेक दैट मिस्टेक। प्लस फर्स्ट स्टेप, सप्लायर एंड रेसिपिएंट को प्लॉट करो। दोनों इंडिया में है तो आपको सेक्शन 12 देखना है, दोनों में से एक बाहर है तो ही 13 देखना है, बराबर है। तो अभी मैं आपको एग्जांपल थोड़ा चेंज कर देता हूँ, बराबर है। सेक्शन मैं अभी एग्जांपल आपको पूछ रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर कोई रशियन टूरिस्ट आता है गोवा में, रशिया से वो टूरिस्ट गोवा में आया है, करेक्ट, मिस्टर ए, ही केम फ्रॉम रशिया टू गोवा एंड ही सेज टू ताज होटल गोवा कि आई एम फ्रॉम रशिया, सो यू डोंट चार्ज मी टैक्सेस, जीएसटी मत चार्ज करो। तो इज ही राइट? यहां पर रिसिपिएंट सेक्शन 13 सब प्लस 2 एप्लीकेबल होगा क्या यहां पर? आंसर इज नो, परफेक्ट। कौन सा एप्लीकेबल होगा? 13 सब प्लस 4। 13 सब प्लस 4 क्या कहता है? प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो चलो अभी लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ताज होटल कहां पर है? गोवा में, करेक्ट। ताज जो कंपनी है सप्लायर, वो कहां पर है? गोवा में। तो जीएसटी कौन सा चार्ज करेगा? वो जो रशियन टूरिस्ट है उसको आईजीएसटी चार्ज करेगा या सीजीएसटी एचजीएसटी चार्ज करेगा? C+S या आईजीएसटी? few of you are saying IGST, answer is no। यहां पर सीजीएसटी एंड एचजीएसटी चार्ज होगा, बिकॉज दोनों सेम स्टेट में इंट्रा स्टेट माना जाएगा ये ट्रांजैक्शन को, ठीक है। यहाँ पर C+S चार्ज होगा, द ट्रांजैक्शन विल क्वालिफाई एज इंट्रा स्टेट, ठीक है। तो जिनका इनकरेक्ट आंसर आया है नोट कर लो ये स्पेसिफिकली एग्जाम्पल के साथ, ताकि आप नेक्स्ट टाइम ये सेम एरर ना करो। चलो, तो उसके बाद अभी हम नेक्स्ट सिचुएशन में जाते हैं, दैट इज नेक्स्ट रूल में जाते हैं, 13 सब क्लॉज 5, सेक्शन 13 सब क्लॉज 5। यहाँ पर ये प्रोविजन क्या कहता है? दिस प्रोविजन टॉक्स अबाउट इवेंट। तो एग्जैक्टली सिमिलर टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, बिकॉज इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि फिजिकली वो इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया में है तो टैक्स लगने ही वाला है। तो एग्जैक्टली सिमिलरली इवेंट अगर इंडिया में है तो टैक्स लगने वाला है, एज सिंपल एज दैट। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा है यहाँ पर कि भैया कोई भी टाइप का अगर आप इवेंट लेने वाले हो, वो इवेंट हो सकता है कि कल्चरल हो, आर्टिस्टिक, स्पोर्टिंग, यानी आईपीएल का मैच है, साइंटिफिक हो, एजुकेशनल है, कोई तो भी एजुकेशनल इवेंट है, या कोई सेलिब्रेशन भी है, कोई किसी की शादी है या कोई कॉन्फ्रेंस है, तो इसके रिलेटेड जो सर्विसेज है बाय वे ऑफ एडमिशन टू और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, यानी आपने देखा रहेगा ये मिस्टर जस्टिन बीबर आया था ना बॉम्बे में, बराबर है। तो सप्लाइड बाय वे ऑफ एडमिशन टू और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इवेंट। तो यहां पर जो इवेंट हुआ, बराबर है, वो बॉम्बे में हुआ, डीवाई पाटिल में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी व्हाट? बॉम्बे। तो जहां पर वो इवेंट हुआ दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, करेक्ट। तो यहाँ पर प्रैक्टिकली जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर समझो आपने सिंगापुर का कोई इवेंट, सनबर्न फेस्टिवल सिंगापुर में आप चले गए, बराबर है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? सिंगापुर होगा। यानी सिंपली गवर्नमेंट ने कहा है जहां आपका इवेंट हो रहा है दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, एज सिंपल एज दैट। यस ममता, यू आर राइट। तो बेसिकली यस दीपाली जी, यू आर राइट। तो अगर यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई जो है, इट इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट एन इवेंट विच इज फिजिकल इवेंट। यहाँ पर जो डिजिटल इवेंट है, एज दीपाली इज आस्किंग स्पेसिफिकली कि अगर कोई डिजिटल इवेंट है तो वो यहाँ पर कवर होगा कि नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बिकॉज अगर आप देखोगे सेक्शन 13 इसकी जो लैंग्वेज है, यहाँ पर आई जस्ट रीड द स्पेसिफिक लैंग्वेज विच इज देयर। इट टॉक्स अबाउट द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज सप्लाइड बाय ऑफ एडमिशन टू और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कल्चर और आर्टिस्टिक इवेंट वगैरह वगैरह, एंड सर्विसेज सिमिलर टू एडमिशन और ऑर्गेनाइजेशन shall be the place where the event is actually held। तो यहाँ पर जब हम ऑनलाइन इवेंट की बात करते हैं तो बेसिकली ये जो सेक्शन 13 सब प्लस 5 है, इट इज टिपिकली, अगर आप लैंग्वेज का इसेंस देखेंगे, इट इज टॉकिंग अबाउट फिजिकल इवेंट, इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट डिजिटल इवेंट। इसका रीजन ये भी हो सकता है कि 2017 में जब जीएसटी आया था, डिजिटल इवेंट इतने प्रोमिनेंट नहीं थे। ऑब्वियसली अभी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन डिजिटल इवेंट हैज बिकम वेरी प्रोमिनेंट, एंड दैट द रीजन इन डेज टू कम, एज दीपाली हैज राइटली हाइलाइटेड, कि डिजिटल इवेंट का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा इशू आ सकता है, करेक्ट। बिकॉज देयर इज नो स्पेसिफिक सर्विस। एक बोला जा सकता है कि 13.5 में कवर नहीं है, बिकॉज 13.5 का जो इसेंस अगर आप देखोगे ना, एडमिशन टिपिकली फिजिकल एडमिशन की बात करो, डिजिटल नहीं, बराबर, ऐसा आर्गुमेंट लिया जा सकता है। और यहाँ पर आप बोल सकते हो कि 13
5 में कवर्ड नहीं है, तो हो सकता है लोग 13(2) जेनरिक प्रोविजन में जाने का ट्राई करें। तो यहाँ पर ये डिबेटेबल इश्यू है, दैट इज व्हाट आई कैन हाईलाइट फॉर द टाइम बीइंग। नेक्स्ट, करुणा इज सेइंग टॉकिंग अबाउट वेडिंग प्लानर एंड कस्टमर इज फ्रॉम मुंबई। वेडिंग इज, अभी यहाँ पर वेडिंग प्लानर की अगर हम बात करें तो एग्जैक्टली सेम, दोनों अगर इंडिया में है तो सेक्शन 13 एप्लीकेबल नहीं होगा, वहां पर सेक्शन 12 एप्लीकेबल होगा। 12 के लिए अलग प्रोविजन से वो हम बाद में देखने वाले हैं। अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि कोई इवेंट कॉन्फ्रेंस का हम बात करते हैं, बराबर है, तो कॉन्फ्रेंस अगर इंडिया में हो रहा है तो वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई जो रहेगा दैट वुड ऑलवेज बी, इफ द प्लेस ऑफ इवेंट इज इन इंडिया देन द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी इंडिया ओनली। तो चलो उसके बाद और कुछ हम एग्जांपल लेते हैं, देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट सब रूल। यहाँ पर मुझे लगता है कुछ क्वेश्चंस, आई विल जस्ट ट्राई टू सी इफ दे आर रिलेवेंट, आई विल ट्राई टू टेक इट। यहाँ इवन जो ऑब्वियसली ऑनलाइन इवेंट का अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा, बट वो सेक्शन 12 की जब हम बात करेंगे दैट टाइम वी विल ट्राई टू कवर इट अप। तो चलो, तो यहाँ पर हमने देखा कि इवेंट अगर एक लोकेशन में हो रहा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई बेसिकली वो इवेंट का लोकेशन, जैसे हमने डीवाई पाटिल का एग्जांपल लिया, तो डीवाई पाटिल का जो एग्जांपल है वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी डीवाई पाटिल स्टेडियम। अगर स्पोर्टिंग इवेंट का बात करते हैं, दुबई वगैरह में अगर कोई इवेंट हो रहा है, देन द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी दुबई ओनली। करेक्ट, सो परफेक्ट, यानी ऑर्गेनाइज किया जाने वाला जहां होने वाला दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, यानी इंडिया के अंदर रहेगा तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी इंडिया, यानी प्रैक्टिकली उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर इंडिया के बाहर है तो आप बोल सकते हो प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया। अभी ये तो हो गया सिंपल सिचुएशन, इवेंट एक लोकेशन पे हो रहा है तो, लेकिन कभी कभी क्या होता है इवेंट मल्टीपल लोकेशन पे हो जाता है, वहां बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। आप बोलोगे यार सर ऑलरेडी एक इवेंट की हम बात कर रहे हैं तो उसमें इतना कंफ्यूजन है, अभी मल्टीपल इवेंट की अगर बात करने मुझे तो सुनना ही नहीं है करके। बट ध्यान दो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट या क्रिटिकल सब क्लॉज है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर मोर देन वन लोकेशन में इंक्लूडिंग अ लोकेशन इन टैक्सेबल टेरिटरी यानी इंडिया, तो अगर इंडिया के अंदर कोई इवेंट हो रहा है एंड सेम इवेंट इंडिया के बाहर भी होने वाला है, यानी श्रीलंका में भी होने वाला है, बराबर है, तो गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर एक एक्टिविटी जो रिपेयर मेंटेनेंस का हो सकता है सब क्लॉज 4, इमूवेबल प्रॉपर्टी का हो सकता है सब क्लॉज 5, या इवेंट का हो सकता है सब क्लॉज 6, ये 3 सब क्लॉज के रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी है, कोई सर्विस है, कोई ट्रांजैक्शन है, और वो मल्टीपल लोकेशन में होने वाला है, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने कहा है टैक्स तो पूरे अमाउंट पे लगेगा। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस सब क्लॉज वेरी वेल। तो समझो आपके पास हार्ले डेविडसन जो कंपनी है वो आपके पास आई है और उन्होंने बोला है कि हमने हार्ले डेविडसन का एक नया बाइक बनाया है, ये बाइक का हमको टेस्टिंग करना है, हमको पता नहीं भैया कि ये पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका के रोड के लिए बना है क्या नहीं, बिकॉज हमने ये पूरा डिजाइन वगैरह अमेरिका में किया, अमेरिका में तो रोड एकदम एक नंबर है मक्खन के जैसे, तो वहां प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंडियन रोड्स के लिए ये बाइक बना है कि नहीं हमको पता नहीं है, तो आप हमको टेस्टिंग करके दो ये बाइक का। और आपको क्या करना है, 300 किलोमीटर आपको कहाँ चलाना है, पाकिस्तान में, आपको 400 किलोमीटर इंडिया में चलाना है, और 300 किलोमीटर आपको चलाना है श्रीलंका में। तो 1000 किलोमीटर आपको ये बाइक लाइव टेस्टिंग करनी है और आपको रिपोर्ट देना है। किसको देना है ये रिपोर्ट, आपको टेस्टिंग का रिपोर्ट देना है बेसिकली अमेरिकन कंपनी को। द रेसिपिएंट इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, लेकिन आप इसका टेस्टिंग कहां पर कर रहे हो, फिजिकल टेस्टिंग इंडियन रोड्स के ऊपर, बराबर है। तो आप बोल सकते हो द सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स दैट इज द बाइक विच विल बी मेड अवेलेबल इन इंडिया। और ये भी बोला जा सकता है कि भैया ये इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड है, बिकॉज आप इंडियन रोड पे वो गाड़ी चलाने वाले हो, करेक्ट। तो या तो 4 में कवर्ड हो या तो 5 में हो, लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट हमने देखा कि आप टेस्टिंग 500 किलोमीटर में जो 300 किलोमीटर आप कहाँ चलाने वाले हो, आप पाकिस्तान में, 300 किलोमीटर चलाने वाले हो श्रीलंका में, और 400 किलोमीटर चलाने वाले इंडिया में। और ये 1000 का जब आप काम करोगे, टेस्टिंग करोगे, रिपोर्ट दोगे, तो आपको अमेरिकन कंपनी जो है आपको 10 लाख रुपए देने वाला है, 1 मिलियन INR रुपीज आपको देने वाला है। तो वो जो 10 लाख रुपए है उसके ऊपर आपको जीएसटी एप्लीकेबल करना है कि नहीं, ये क्वेश्चन आपके माइंड में है, बराबर है। तो उसको आपको आंसर करना है, तो आपको 13(6) ये प्रोविजन आपको हेल्प करेगा। वो कहता है कि मल्टीपल लोकेशन की जब हम बात करते हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी द लोकेशन इन टैक्सेबल टेरिटरी, यानी अगर इंडिया में आपने 400 किलोमीटर भी गाड़ी चलाया
600 किलोमीटर अपने इंडिया के बाहर चला है, 300 किलोमीटर पाकिस्तान में, 300 किलोमीटर श्रीलंका में, यानी 60% आउटसाइड इंडिया, 40% इन इंडिया। लेकिन गवर्नमेंट बोलता है भैया ये टोटल एंटायर 10 लाख रुपीज पे हमको टैक्स चाहिए। एक्चुअली अगर आप लॉजिकली देखोगे, गवर्नमेंट ने बोलना चाहिए था पार्शियली प्रोपोर्शनेटली आना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट बोलता नहीं, अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो टोटल अमाउंट पे हमको टैक्स चाहिए। तो मैं कहूंगा ये थोड़ा प्रोविजन ग्रीडी प्रोविजन है, ग्रीडी है थोड़ा, बराबर है। तो यहाँ पर बेटर क्या होगा, सोल्यूशन क्या होगा, अगर आपके पास ऐसा कोई क्लाइंट आता है बोलता है अरे मुझे टैक्स तो नहीं पे करना है टोटल अमाउंट पे, जो इनकरेक्ट लग रहा है, तो आपने बेटर क्या करना चाहिए ये सिचुएशन में? व्हाट इज द सॉल्यूशन यू आर गोइंग टू गिव टू द क्लाइंट? परफेक्ट, राजेश, विशाल, यू आर राइट। यू नीड टू डिवाइड द कॉन्ट्रैक्ट, बराबर है। तो आप बोलो कि भैया 3 लाख रुपए मेरा पाकिस्तान के लिए होगा, 3 लाख रुपए मेरा श्रीलंका के लिए होगा, और 4 लाख रुपए मेरा इंडिया के लिए होगा। तो जो इंडिया के लिए 4 लाख है उसके ऊपर आपको जीएसटी पे करना है। जो 3 लाख श्रीलंका में दिया आपने, जो 3 लाख आपने वहां पर दिया, करेक्ट, वहां पर टैक्स पे नहीं करोगे। एम आई राइट? परफेक्ट। और ये इनकम की बात कर रहा हूँ, किसी ने रिवर्स टैक्स के बारे में पूछा है, हम इनकम की बात कर रहे हैं या एक्सपेंडिचर की नहीं। तो आप खुद वहां पर जाने वाले हो, यानी आप क्या करोगे, मे बी वाघा बॉर्डर पे जाओगे, वाघा बॉर्डर से आप पाकिस्तान में एंटर करोगे, 300 किलोमीटर घूमेंगे, वहां से आप वापस आ जाओगे इंडिया। यहाँ पर आपने 400 किलोमीटर घुमाया और श्रीलंका में आप चले गए बाद में 300 किलोमीटर के लिए। तो गवर्नमेंट बोल रहा है ठीक है, आप जो भी आपका इनकम है, आप विद इन इंडिया जो एक्टिविटी परफॉर्म किया उसके लिए टैक्स भरो, बाकी के लिए आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। परफेक्ट। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट स्प्लिट करना पड़ेगा, मनाली, यू आर राइट, यू हैव टू हैव अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। कोई बोल रहा है कि बिल सेपरेटली बनाओ, तो ऑब्वियसली सिर्फ बिल सेपरेटली बनाओगे तो अथॉरिटी बोलेगा कॉन्ट्रैक्ट एक था। तो जब भी ऐसा प्रैक्टिकल कोई सिचुएशन आता है, सीन आता है, तो वहां पर आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट भी सेपरेट बनाओ, बराबर है, या कॉन्ट्रैक्ट में सेपरेट डिवीजन रखो। अगर आप सिर्फ बिल एक अलग अलग बनाओगे तो गवर्नमेंट बोलेगा कॉन्ट्रैक्ट एक था, आपने सिर्फ टैक्स बचाने के लिए बिल अलग बनाए, हम तो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने वाले हैं, हम तो कॉन्ट्रैक्ट ध्यान से देखेंगे। तो इसके लिए ये ध्यान रखो कि बहुत बार ऐसे केस में बेटर है कॉन्ट्रैक्ट लेवल से आप स्प्लिट करो रादर देन इनवॉइस लेवल पे। यहाँ पर अभी हम एग्जांपल लेते हैं, अलग एग्जांपल। आपको कहा गया है कि भाई आप 10,000 किलोमीटर इंडिया में ही ये बाइक चलाओ, 10,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर इंडिया में चलाओ, तो उसके ऊपर आपको जो भी आप बाइक चलाओगे तो आपको हम 10,000 किलोमीटर जाने के 10 लाख रुपए दे देंगे, बराबर, आप जो रिपोर्ट दोगे उसके ऊपर। तो यहाँ पर अलग अलग स्टेट में आप गाड़ी चला के टेस्टिंग करने वाले, अलग अलग रोड पे। तो वहां पर भी गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर मोर देन वन स्टेट है, बराबर है, मोर देन वन स्टेट है, तो वो स्टेट में अलग अलग 10,000 किलोमीटर, महाराष्ट्र में 2,000 किलोमीटर चला, यूपी में 2,000 चलाया, गुजरात में 2,000 किलोमीटर चलाया, आंध्र प्रदेश में 2,000 चलाया, और तेलंगाना में 2,000 चलाया। तो गवर्नमेंट बोल रहा है ये स्प्लिट करो अलग अलग स्टेट में, एंड अलग अलग स्टेट को, ताकि टैक्स का रेवेन्यू चला जाए, बराबर। अगर आप महाराष्ट्र में हो तो पूरा गवर्नमेंट को जो है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने बोला ये नहीं चलेगा, अभी जीएसटी में अलग अलग स्टेट को रेवेन्यू मिलना चाहिए, दैट द रीजन यू नीड टू स्प्लिट द कॉन्ट्रैक्ट इन प्रोपोर्शन। तो ये हो गया आपका सेक्शन 13 सब क्लॉज 7। अभी उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज 13 सब क्लॉज 8, जहां पर 3 अलग अलग सब क्लॉजेस है, ए, बी एंड सी, जहां पर इंटरमीडिएट या एजेंट की बात हो जाती है। इंटरमीडिएट या एजेंट की बात की गई है। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है कि भैया जो एजेंट है, जो इंटरमीडिएट है, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। ऑब्वियसली एजेंट की जब हम बात करते हैं हमको तो जेम्स बॉन्ड याद आता है, बराबर है। लेकिन यहाँ पर वो जो एजेंट की हम बात कर रहे हैं वो है ब्रोकर, करेक्ट, कमीशन एजेंट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो सेक्शन 13 सब क्लॉज 8 में जैसे हमने कहा 3 सब क्लॉज आ जाते हैं। बी सब क्लॉज जो है इट टॉक्स अबाउट द इंटरमीडिएट सर्विसेज। तो यहाँ पर सेक्शन 13 सब क्लॉज 8 सब क्लॉज बी में क्या बोला गया है, द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉलोइंग सर्विसेज शैल बी लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। यानी अगर एजेंट इंडियन है तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी इंडिया ओनली, यानी यहाँ रिसिपिएंट नहीं देखना है, यहाँ आपको परफॉर्मेंस नहीं देखना है, इमोबल प्रॉपर्टी नहीं देखनी है, बराबर। यहाँ पर आपको क्या देखना है कि भैया बेसिकली जो एजेंट है उसका लोकेशन क्या है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां एजेंट लोकेटेड है वहां पर आपको फोकस करना है, जहां एजेंट लोकेटेड है। यू शुड नॉट सी वेयर इज द रिसिपिएंट, you should not see where is the performance of that activity. You should only see what is the location of the agent, and जो agent का location है वही आपका place of performance या वही आपका place of supply करके माना जाएगा। परफेक्ट, एक सेकंड।
यस, वी आर बैक। तो यहाँ पर पहली बात तो ये आएगी कि भैया इंटरमीडिएट सर्विस प्रोवाइडर कौन है। तो पहले मैं आपको एक जो एग्जांपल हमने कल भी डिस्कस किया था कि कोई इंडियन कंपनी है, इंडियन पर्सन है जो एक अमेरिकन कंपनी के लिए से माइक्रोसॉफ्ट के लिए इंडिया में सॉफ्टवेयर बेचता है। एंड माइक्रोसॉफ्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि जितने भी सॉफ्टवेयर बिकेंगे उसका उनको एक परसेंटेज मिलेगा, ऐसे 10% उनको मिलता है। तो ये इंडियन एजेंट का काम क्या है, अलग अलग कंपनी में जाके मिलना, बात करना, डिस्कस करना, एंड जो भी सेल होगा उसका एक 10% कमीशन इसको मिलेगा। तो बेसिकली ये पर्सन अभी इंटरमीडिएट के डेफिनेशन में आएगा कि नहीं, तो लेट अस अंडरस्टैंड। तो इंटरमीडिएट का जो डेफिनेशन है वो जीएसटी एक्ट में दिया गया है सेक्शन 2(13) में। तो इंटरमीडिएट का डेफिनेशन क्या है, इंटरमीडिएट मीन्स अ ब्रोकर और एन एजेंट। तो बेसिकली एजेंट को कवर किया गया है, ब्रोकर को कवर किया है, और एनी अदर पर्सन बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, यानी एनी अदर पर्सन बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, उसको आप अड़तिया बोलो, बिकॉज आपको पता है कि जो मार्केट यार्ड वगैरह में रहते हैं लोग उनको अड़तिया कहा जाता है, अड़तिया बराबर, जो कमीशन एजेंट रहते हैं, कमीशन एजेंट बोलो, कोई भी नाम दो, लेकिन द नेचर ऑफ द पर्सन एक्टिविटी शुड बी अ ब्रोकर और एजेंट, करेक्ट, हु अरेंजेस और फैसिलिटेट, यानी उसने अरेंज करना चाहिए, क्या अरेंज करना चाहिए, गुड्स का सप्लाई या सर्विसेज का सप्लाई या बोथ। तो ही इज वर्किंग एज अ इंटरमीडियरी, ही इज वर्किंग एज अ इन बिटवीन पर्सन, इंटरमीडियरी यानी इन बिटवीन टू पीपल, एक है सप्लायर और एक है रिसिपिएंट, उसके बीच का ये पर्सन है, बराबर है, हु इज अरेंजिंग द सप्लाई, बिकॉज उसको पता है कस्टमर को क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर अच्छा किसके पास है, माइक्रोसॉफ्ट के पास है। तो ही इज सेइंग कि सप्लायर को बोल रहा है कि भैया ये जो कस्टमर है उसको आप कनेक्ट करो, इसको सॉफ्टवेयर चाहिए, इन दोनों को मिला रहा है, बराबर है, ही इज अ पर्सन हु इज वर्किंग एज ए एजेंट, ही इज वर्किंग एज ए ब्रोकर। तो दोनों को मिला रहा है, दोनों का मिलाप कर रहा है, और उसके लिए जो भी उसके बाद में सेल होगा उसको कमीशन मिलेगा, करेक्ट, उसको ब्रोकरेज मिलेगा। एंड बेसिकली दिस काइंड ऑफ अ पर्सन, जो एक्टिविटी है उसको आप इंटरमीडिएरी का डेफिनेशन के अंदर कवर है ऐसा बोल सकते हो, बराबर है, बिकॉज ही इज अ पर्सन हु इज अरेंजिंग और फैसिलिटिंग द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ और सिक्योरिटीज बिटवीन टू और मोर पर्सन। बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एक्सक्लूजन है, बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु सप्लाई सच गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ ऑन हिज ओन अकाउंट, यानी खुद प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे कोई अगर एक्टिविटी कर रहा है तो ही इज नॉट कवर्ड, हु इज कवर्ड, एजेंट इज कवर्ड। तो यानी बेसिकली ही शुड वर्क ऑन बिहाफ ऑफ समबडी। अभी प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस में क्या होता है कि अगर मैं इंडिया में हूं, मैंने माइक्रोसॉफ्ट के जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर मैंने परचेस कर लिए, एंड देन आई एम सेलिंग इट ऑनवर्ड्स, देन आई एम नॉट इंटरमीडिएरी, मैंने परचेस करके सेल कर रहा हूं, मैं प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे सेल कर रहा हूं वहां पर। अगर मैं एजेंट हूं, इफ आई एम वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, तो ही मैं यहाँ पर कवर होऊंगा, यानी प्रिंसिपल टू एजेंट रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। इफ यू आर डूइंग द एक्टिविटी ऑन योर ओन अकाउंट, then practically you will not get covered under the definition of intermediary, बराबर है। अभी इंटरमीडिएरी करके क्वालिफाई हो गए तो प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि आपका जो प्लेस ऑफ सप्लाई है दैट इज योर लोकेशन, यानी आपका जो लोकेशन है वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, यानी अगर आप इंडिया में हो तो आपको जितना भी कमीशन इनकम आपको मिला है वो टोटल अमाउंट आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, एंड दैट इज द प्रॉब्लम फ्रेंड्स। अगर आप इंटरमीडिएट के डेफिनेशन में कवर हो गए तो जीएसटी पेबल हो जाता है 18%, and that is the biggest challenge, that's the reason people try to come out of the definition of intermediary, बराबर है। लेकिन अगर आप कमीशन एजेंट है तो सर्टेनली आप बाहर नहीं आ सकते हो, आपको जीएसटी पे करना ही पड़ेगा। तो अभी यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूँ और आपको जवाब देना है कि वेदर यू आर क्वालिफाइंग एज इंटरमीडिएरी और नॉट। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है, समझिए, आप एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, आप क्या हो, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, आप अलग अलग स्टार्टअप्स वगैरह का एनालिसिस करते हो, और वो सब स्टार्टअप वगैरह का एनालिसिस करने के बाद आपको पता चलता है कि भैया ये स्टार्टअप में बहुत पोटेंशियल है। तो आप एक अमेरिकन कंपनी है उनको बोलते हो कि भैया ये 3 कंपनियां है, स्टार्टअप है पूना बेस्ड, इनमें जबरदस्त पोटेंशियल है, आप अगर 10 लाख डालोगे तो आपको 1 करोड़ रुपीज मिलेगा, यानी कि आप इधर से आलू डालो उधर से आपको सोना निकलेगा, एज सिंपल एज दैट। यानी कि 10 लाख अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ कितना भी मिल सकता है आपको। यानी बेसिकली आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो, आप पोटेंशियल इन्वेस्टी ढूंढ के दे रहे हो, किसको ढूंढ के दे रहे हो, अमेरिकन कंपनी को, और जितना वो अमेरिकन कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करेगा वो हिसाब से आपको एक वो एडवाइजरी का फीस देगा। तो आप बताओ आपका जो काम है वो इंटरमीडिएरी के डेफिनेशन में कवर होगा कि नहीं होगा।
एंड अगर होगा तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, अगर नहीं होगा तो पे नहीं होगा। करेक्ट? तो बताइए आप इंटरमीडिएट हो या नहीं हो? ऑलमोस्ट यू आर सेइंग, ऑल ऑफ यू आर सेइंग इंटरमीडिएट है। प्रीति, शुभांगी, माधवी, अरविंद, मनाली, उमा, रवि, प्रशांत, राज, प्रतीक कह रहा है नहीं, महेश कर रहा है यस, ममता इज नो, चंद्रकांत सिंह नो। तो चंद्रकांत या चेतन जो भी आप कह रहे हो कि नहीं है, व्हाई यू थिंक यू आर नॉट इंटरमीडिएट, कैन यू एलेबोरेट? कीर्ति सिंह नो, काफी सारे लोग नो बोल रहे हैं, काफी सारे लोग यस बोल रहे हैं। तो कैन समबडी से या इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल? एक बराबर रीजन एक हो सकता है कि यू आर नॉट वर्किंग एज एजेंट, यू आर वर्किंग एज इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल। बराबर है, ऑलमोस्ट, बिकॉज इज प्रोवाइडिंग ऑन हिज ओन अकाउंट, नॉट एन एजेंट। तो यहाँ पर आप देखो जो भी है, यानी कि देयर आर टू पीपल, एक इन्वेस्टर और एक इन्वेस्टी, बराबर है, जिसके अंदर आप पैसा डालने वाले हो। तो इन्वेस्टर और इन्वेस्टी के बीच में एज ए कंसल्टेंट आपका काम है, बराबर है, आप एडवाइजर हो। आप इन्वेस्टी को ढूंढते हो और इन्वेस्टर को इन्फॉर्म करते हो कि भैया ये 3 इन्वेस्टी है, इनमें आप पैसा डालो। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जब आप एडवाइस दे रहे हो, आपका जो एडवाइजरी सर्विसेज है वो कंज्यूम हो जाता है। कहाँ पर कंज्यूम हो जाता है? जब इन्वेस्टर डिसीजन लेता है कि मुझे इन्वेस्ट करना है क्या नहीं करना है। समझो आपने 3 उसको स्टार्टअप आइडेंटिफाई करके दे दिए, लेकिन इन्वेस्टर बोला कि मुझे इन्वेस्ट नहीं करना है, लेकिन तूने काम किया है भैया, तूने 3 लोगों को अच्छा ढूंढ के लाया था, मेरे हिसाब से मेरे को नहीं इन्वेस्ट करना है, लेकिन तूने टाइम स्पेंड किया ना, तो ये ले, पर पर्सन मैं तुझे 1 लाख रुपए देता हूँ, 3 लाख रुपए तुम्हारा एडवाइजरी का फी है। तो यहाँ पर आप देखिए 3 लाख रुपए आपको इनकम आया, लेकिन फाइनली इन्वेस्टमेंट हुआ क्या? नहीं। तो प्लेस ऑफ सप्लाई आप बोलोगे क्या कि इन्वेस्टमेंट अगर इंडिया में हुआ तो प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया, एंड इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ तो प्लेस ऑफ सप्लाई अमेरिका। ऐसा हम बोल सकते हैं कि इलॉजिकल हो जाएगा, बराबर है। तो ये भी एक आर्गुमेंट आप ले सकते हो कि प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो तब आप बोलोगे बेसिकली जब डिसीजन लिया गया कि इन्वेस्ट करना है क्या नहीं। सो दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, दैट इज रिसिपिएंट लोकेशन। यहाँ पर आपको जरूर ये बोलना पड़ेगा कि मेरा काम इंटरमीडिएट का नहीं है, आई एम नॉट वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ समबडी, आई एम वर्किंग एज ए इंडिपेंडेंट पर्सन, इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल। मैं अलग अलग स्टार्टअप को इवेल्युएट कर रहा हूँ, बराबर है। और एडिशनल और भी एक आप आर्गुमेंट ले सकते हो। कोई बता सकता है वो कौन सा आर्गुमेंट है कि आप यहाँ पर जीएसटी इंटरमीडिएट करके क्वालिफाई नहीं होगे करके? कैन एनीबॉडी टेल व्हाट आर्गुमेंट कैन बी टेकन? यस दीपल, यू आर राइट। इंटरमीडिएट का जो डेफिनेशन इट स्टार्ट्स विथ मीन्स, यानी मीन्स एजेंट और ब्रोकर और एनी अदर पर्सन। तो एनी अदर पर्सन जो है वो एजिस डिम जनरिस करके एक रूल है, यानी जब एनी अदर पर्सन, थर्ड पर्सन जब यहाँ पर रेफर किया गया है, ही शुड बी ईदर एजेंट और ब्रोकर। आप एडवाइजर हो, आप एजेंट और ब्रोकर नहीं हो। और एक आप आर्गुमेंट ले सकते हो, हु अरेंजेस और फैसिलिटेट सप्लाई ऑफ गुड्स। आप सप्लाई ऑफ गुड्स फैसिलिटेट कर रहे हो क्या दोनों के बीच में? नहीं। सप्लाई ऑफ सर्विस फैसिलिटेट कर रहे हो क्या? नहीं। बोथ कर रहे हो क्या सप्लाई? नहीं। सिक्योरिटीज आप कोई स्टॉक ब्रोकर एजेंट हो क्या? नहीं। यानी जो पर्सन के बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो पैसा ट्रांसफर कर रहा है अमेरिकन कंपनी इंडियन कंपनी में। तो प्रैक्टिकली आप ये भी बोल सकते हो देयर इज नो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, बोथ आर सिक्योरिटीज बिटवीन द 2 पर्सन, बराबर है। एंड प्रैक्टिकली वहां से भी आप बोल सकते हो कि आई एम नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ इंटरमीडिएट। परफेक्ट। किसी ने बोला है कि वॉट एवर नेम कॉल्ड, उसमें एडवाइजर भी आएगा? नहीं। वॉट एवर नेम कॉल्ड जो है उसको लिमिटेशन आएगा। लिमिटेशन क्यों आएगा? बिकॉज जहां पर पहले जो 2 वर्ड्स है, पहले 2 वर्ड्स क्या है? यहां लिखा है ब्रोकर और एजेंट और एनी अदर पर्सन बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। नाम कुछ भी रखो आप, करेक्ट। एज शेक्सपियर हैज आल्सो सेड व्हाट्स इन द नेम। तो नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ही शुड बी सिमिलर टू ब्रोकर और एजेंट। काफी सारे सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट है यहाँ पर एजुडिन जनरल प्रिंसिपल पे कि पहले 2 वर्ड जब दिए जाते हैं तो तीसरा वर्ड जो है भले एनी अदर पर्सन है, बट ही शुड बी सिमिलर टू फर्स्ट 2 पर्सन, ही शुड बी सिमिलर टू एजेंट, ही शुड बी सिमिलर टू ब्रोकर। तभी आप बोल पाओगे कि भैया वो एनी अदर पर्सन में आएगा, वॉट एवर इज नेम, कमीशन एजेंट बोलो, आड़तिया बोलो, जो भी रहेगा,
लेकिन अदरवाइज वो कवर नहीं होगा। यहाँ पर किसी ने बोला है कि यहाँ पर C++ अगर इंटरमीडिएट कोई क्वालिफाई हो जाता है तो ये एग्जांपल में आपको आंसर आपको मिल गया कि इंटरमीडिएट करके क्वालिफाई नहीं होगा। इज दैट राइट? आपको आंसर मिल गया यहाँ पर इंटरमीडिएट करके क्वालिफाई नहीं होगा करके। परफेक्ट परफेक्ट। तो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। बहुत बार इंटरमीडिएट करके कोई अगर क्वालिफाई होता है तो वहां पर टैक्स क्या पे करना है? शुड आई पे द टैक्स एट CGST एंड SGST और शुड आई पे द टैक्स IGST? तो यहाँ पर तो ये एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, यहाँ पर हमारा जो व्यू है, वी बिलीव CGST और SGST आएगा, बिकॉज जैसा आप सेक्शन 13 सब प्लस 4 के बारे में देखते हैं, 13 सब प्लस 4 में इमूवेबल प्रॉपर्टी का जब लोकेशन आता है वहां पर होटल की हम बात करते हैं वगैरह, एवरीबडी इज पेइंग C+S इररिस्पेक्टिव ऑफ रेसिपिएंट लोकेशन। तो हमारा मानना है यहाँ पर भी सिमिलरली इंटरमीडिएट सर्विसेज में C+S पेएबल होगा। वी नो एज अ प्रोफेशनल देयर आर फ्यू कंसल्टिंग फर्म्स जिन्होंने IGST का कहा है कि प्रोविजन एप्लीकेबल होगा और आपको IGST पे करना पड़ेगा। बट वी हैव टू ओनली नाउ वेट एंड वॉच कि भैया यहाँ पर कौन सा राइट व्यू होगा, C+S या I। हमारा व्यू राइट नाउ है इट इज C+S विच शुड बी एप्लीकेबल नाउ। और किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी सर्विसेज यहाँ पर कवर होगी? तो इंटरमीडिएट के केस में जैसे हमने कहा टिपिकली कमीशन एजेंट सर्विसेज जो है वो कवर होगी यहाँ पर। ठीक है, जो भी कमीशन एजेंट है, इंडिया में काफी सारे कमीशन एजेंट है गुड्स और सर्विसेज का लिए, जो फॉरेनर्स को वो इंडियन मार्केट में पेनिट्रेट करने के लिए हेल्प करते हैं, बराबर है। सो दे गेट सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ कमीशन। हो सकता है कभी 1, 2, 3, 5%, 10% है, तो जो भी उनका कमीशन है वो सबके ऊपर GST लग जाएगा। ठीक है, परफेक्ट। ये C+S लगेगा करके। और श्वेता ने पूछा है कि मैं ऑनलाइन सप्लायर हूँ, रीसेलर हूँ और मैं प्रॉफिट अर्न करती हूँ, बराबर है। तो जब आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तो श्वेता वहां पर आप इंडिपेंडेंट पर्सन हो, यू आर वर्किंग ऑन योर ओन अकाउंट। यहाँ पर आप इंटरमीडिएट करके क्वालिफाई नहीं होगे। ठीक है, यहाँ पर आप इंटरमीडिएट करके क्वालिफाई नहीं होगे बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन योर ओन अकाउंट। जहां पर भी आपको प्रॉफिट होता है वहां पर आपको इंडिपेंडेंट आप काम कर रहे हो, वहां पर इंटरमीडिएट करके आप क्वालिफाई नहीं होगे, बराबर है। इंटरमीडिएट कब हो गया? आप जब किसी के लिए एजेंट करके काम कर रहे हो और परसेंटेज बेसिस पे प्रैक्टिकली आपको आप बोल सकते हो कि कमीशन मिल रहा है। ठीक है, किसी ने पूछा है कि BPO वगैरह जो है वहां पर उनको इंटरमीडिएट करके आप क्वालिफाई कर सकते हो क्या? हमारा व्यू है नहीं, BPO KPO जो भी है वो इंटरमीडिएट करके क्वालिफाई नहीं होंगे बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन देयर ओन अकाउंट, दे आर नॉट वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ समबडी। यहाँ पर कुछ सर्विस टैक्स के भी कुछ जजमेंट्स है जहां पर स्पेसिफिकली बताया गया है सर्विस टैक्स रेजिम के कि यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई जो होगा वो रिसिपिएंट का लोकेशन होगा। एंड आप को मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों ने सर्विस टैक्स रेजिम में काम किया है, लेकिन सर्विस टैक्स रेजिम में भी इंटरमीडिएट का वर्ड यूज हुआ था, वहां पर भी इंटरमीडिएट सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगता था। तो उसके कंटेक्स्ट में काफी सारे जजमेंट है जहां पर बोला गया है, इवन सर्कुलर्स है कि BPO KPO सर्विसेज में इंटरमीडिएट जो अगर आप BPO सर्विसेज दे रहे हो तो आप इंटरमीडिएट करके क्वालिफाई नहीं होगे। ठीक है, परफेक्ट। एक बीच में गवर्नमेंट ने सर्कुलर भी लाया था ITES सर्विसेज के ऊपर, वो फॉर्चुनेटली बाद में विड्रॉ कर दिया गया है। तो वहां पर आप बोल सकते हो कि अभी वो सर्कुलर जो आया था विड्रॉ कर दिया 2019 में मुझे लगता आया था, तो उसके बारे में आपको वरी करने की जरूरत नहीं बिकॉज वो सर्कुलर में थोड़ा इनकरेक्ट चीजों को भी इंटरमीडिएट बोला गया था। यू नीड नॉट वरी नाउ अबाउट दैट सर्कुलर बिकॉज इट इज विड्रॉन। गवर्नमेंट ने कहा था कि हम राइट या करेक्ट सर्कुलर लाने वाले, अनफॉर्चुनेटली कभी वो राइट या करेक्ट सर्कुलर गवर्नमेंट ने लाया ही नहीं। ठीक है, तो चलो अभी हम सेक्शन 13 सब क्लॉज 8 जो सबसे इंपॉर्टेंट सब क्लॉज था वो तो कवर कर लिया। अभी नेक्स्ट जाते गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के बारे में। जब हम गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के बारे में बात करते हैं तो वहां पर बेसिकली गवर्नमेंट ने कहा है कि गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अदर देन बाय वे ऑफ मेल और कुरियर, मेल और कुरियर जो टिपिकली इंडिविजुअल एज अ पर्सन, मैं जाके मेरे भाई के लिए कुछ भेज रहा हूँ, आप आपके भाई के लिए, अगर आप सिस्टर हो आप आपके भाई के लिए मे बी राखी वगैरह भेज रहे हो, बराबर है। तो ऐसे केस में जो मेल और कुरियर सर्विसेज है वो छोड़ के जो बाकी के सर्विसेज यानी जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स जो मेजर सर्विसेज है, बराबर, जिसे शिप के थ्रू होता है, जो एरोप्लेन के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला है द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स। यानी अगर आपने अमेरिका में गुड्स भेजे तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज अमेरिका, चाइना में यहाँ से गुड्स गए तो प्लेस ऑफ सप्लाई चाइना, बराबर है। यानी जहां का
आपने लोकेशन दिया है कि गुड जहां डिस्टाइन की है, जहां गुड जाने वाले हैं, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। यानी प्रैक्टिकली जितना भी आउटबाउंड, जिसको आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन आप बोल सकते हो, आउटबाउंड ट्रांसपोर्टेशन बोल सकते हो, वो सबके केस में प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी आउटसाइड इंडिया। ठीक है, डेस्टिनेशन जहां पर है वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई आपका होगा। अभी कभी कभी क्या होता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई के केस में आप देखोगे कि जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन जो सर्विस होता है, बराबर, पर्सन जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वहां पर आप देखोगे कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, ये क्वेश्चन हो जाता है। यानी कि आपको जाना है समझो मलेशिया, बराबर है, आपको जाना है मालदीव, बराबर है, आपको जाना है दुबई, आपको जाना है यूएस। तो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, यानी कि अगर आप डेस्टिनेशन देखोगे, गुड्स के बारे में जो बोला गया है, डेस्टिनेशन आउटसाइड इंडिया है तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी आउटसाइड इंडिया है, तो आज जीएसटी अप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन पैसेंजर के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला है, एग्जैक्टली अपोजिट। जहां पर पैसेंजर एम्बार्क कर रहा है जर्नी पे, जहां पर पैसेंजर एम्बार्क कर रहा है, यानी कि कोई अमेरिकन सिटीजन इंडिया से आउटसाइड इंडिया जा रहा है, बराबर है, या कोई इंडियन सिटीजन अमेरिकन एयरप्लेन में बैठ के अमेरिका जा रहा है, तो वहां पर आप ये नहीं बोल सकते कि जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज मैं बाहर जा रहा हूँ कंट्री के। नो, यहाँ पर प्रिंसिपल कौन सा एप्लीकेबल होगा कि लोकेशन वेयर पैसेंजर इज एम्बार्किंग ऑन द जर्नी। तो जहां से आप बैठ रहे हो दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। गुड्स के लिए केस में जहां आपने गुड्स लोड किए वो नहीं है, जहां गुड्स आपने अनलोड किए वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। लेकिन पैसेंजर के केस में गवर्नमेंट ने बोला है जहां पर आपने पैसेंजर को बिठाया, यानी गवर्नमेंट बोल रहा है कि जितने भी इंटरनेशनल जर्नी के लिए आप इंडिया से निकलोगे आपको जीएसटी प्रैक्टिकली पे करना पड़ेगा। यानी पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की जब बात आती है गवर्नमेंट बोलता है आपको जीएसटी पे करना है। अगर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की बात आती है तो गवर्नमेंट बोलता है भैया हमको जीएसटी नहीं चाहिए। उसका रीजन क्या है, बिकॉज जब गवर्नमेंट गुड्स जब इंडिया के बाहर जा रहे हैं, लॉजिकली अगर आप देखोगे गुड्स इंडिया के बाहर जा रहे हैं तो होता क्या है, फॉरेन करेंसी इंडिया में आता है। लेकिन जब पैसेंजर इंडिया के बाहर जा रहा है तो क्या होता है, आप बाहर जाके इंडियन करेंसी या फॉरेन जो डॉलर वगैरह जो लेके जा रहे हो कन्वर्ट करके वो आप उड़ा दोगे, यानी इंडियन जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो वो कम हो जाएगा। तो जितने पैसेंजर बाहर जाएंगे उतना फॉरेन रिजर्व प्रैक्टिकली कम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि पैसे आपको जाना है तो आप जाओ, लेकिन आपको टैक्स का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको जीएसटी उसके ऊपर पे करना पड़ेगा। प्रैक्टिकली आप देखोगे 5% इकोनॉमिक ट्रैवल पे आता है, 12% आपको बिजनेस क्लास में पे करना पड़ता है। एम आई क्लियर? परफेक्ट। सिमिलरली अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड अगर हम सर्विस देखते हैं तो बहुत बार जब कोई पैसेंजर फ्लाई कर रहा है तो वो बोलता है मुझे खाना चाहिए, मुझे हेड मसाज चाहिए, बराबर है, मुझे म्यूजिक सुनना है। तो वहां पर गवर्नमेंट ने बोला है कि प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो रहेगा फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। अभी फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर क्या होता है कि बहुत बार फ्लाइट अगर आपको समझो दुबई जाना है तो होता क्या है, आपने पुणे से फ्लाइट लिया, वो पहले दिल्ली जाएगा और फिर दिल्ली से दुबई जाएगा। तो गवर्नमेंट ने बोला है फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर कौन सा, ये एग्जांपल में पुणे से फ्लाइट निकला है तो भले पैसेंजर बैठा कहाँ से, दिल्ली से, लेकिन अगर वो पैसेंजर को कोई सर्विस दी गई जो दिल्ली से बैठा है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिपार्चर रिलेवेंट हो जाएगा, पुणे वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। एम आई क्लियर? परफेक्ट। तो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई होगा जो ऑनबोर्ड सर्विसेज दी जाती है उनके लिए द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिपार्चर। और एक एडिशनल सर्विस है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज। यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला है प्लेस ऑफ सप्लाई शैड बी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। यानी अगर कोई फॉरेन सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर है, बराबर, इंडिया के बाहर है, बराबर है, उसने कोई तो भी टेक्नोलॉजी बेस्ड कोई सर्विस दिया है जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल करके क्वालिफाई होता है, तो वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। यहाँ पर मैं आपको और एक बात बताऊं कि बहुत बार जो इंपोर्ट ऑफ सर्विस का जो प्रोविजन आता है यहाँ पर रिसिपिएंट को टैक्स पे करना पड़ता है जो बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन है तो, लेकिन जब इंडिविजुअल की बात आती है, कोई रिसिपिएंट जो है अनरजिस्टर्ड है, जैसा आप है जिसने नेटफ्लिक्स का सर्विस लिया, तो वहां पर गवर्नमेंट ने बोला है कि नेटफ्लिक्स को इंडिया में रजिस्टर होना पड़ेगा और टैक्स पे करना पड़ेगा। ये प्रोविजन मुझे लगता है रिवर्स चार्ज वगैरह के केस में सेपरेटली डिस्कस किए होंगे, तो मैं उसको राइट नाउ अभी ज्यादा डिस्कस नहीं करता हूँ। एंड फाइनली जो एक इंपॉर्टेंट सब क्लॉज है दैट इज सब क्लॉज 10, जहां पर गवर्नमेंट ने बोला है कि कभी कभी हो सकता है कि कोई कंफ्यूजन आ सकता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है कोई केस सर्विसेज के केस में। तो गवर्नमेंट ने बोला है यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी द इफेक्टिव यूज एंड एंजॉयमेंट ऑफ सर्विस जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा। यानी गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ने नोटिफाई करने का पावर रखा है कि भैया मुझे जब कोई नया नियम ऐड करना है मैं नया नियम ऐड कर दूंगा। दैट इज व्हाट सेक्शन
13 सब क्लॉज 10 से। उसके बाद में अभी आते हैं सेक्शन 12 पे। अभी हमारे पास टाइम थोड़ा कम बचा है, इसके लिए मैं थोड़ा क्विकली कवर करूंगा। लेकिन अगर आपको सेक्शन 13 ध्यान से अगर आपने सुना है, समझा है, तो मुझे लगता है सेक्शन 12 भी बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। सेक्शन 13 का एक बार क्विकली अभी हम रिवीजन कर लेते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सेक्शन 13 गुड्स के रिलेटेड है कि सेक्शन 13 सर्विसेज के रिलेटेड था? इज इट फॉर गुड्स और सर्विसेज? सेक्शन 13 सतीश इमीडिएटली सेड गुड्स, इट इज नॉट राइट, इट इज सर्विस के रिलेटेड है। गुड्स के रिलेटेड कौन सा देखना है आपको? सेक्शन, विच सेक्शन वी हैव टू सी? गुड्स के रिलेटेड 10 एंड 11, यू आर राइट यशिका, 10 एंड 11 देखना है गुड्स के लिए। सर्विसेज के लिए सेक्शन 13 आता है। 13 में दो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है कि जो रिसिपिएंट और जो प्रोवाइडर है, प्रोवाइडर एंड रिसिपिएंट में से एक जन आउटसाइड कंट्री रहा तो ही सेक्शन 13 अप्लीकेबल है। बिकॉज अगर दोनों जन इंडिया में रहे तो सेक्शन 12 अप्लीकेबल हो जाता है, जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में हमने सेक्शन 13 का जो जनरल रूल है, सेक्शन 13 सब क्लास 2 पढ़ा, जिसमें बोला कि जो रिसिपिएंट है बराबर है, वो रिसिपिएंट का लोकेशन इज प्लेस ऑफ सप्लाई। रिसिपिएंट का लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई होगा सेक्शन 13 सब क्लास 2 के हिसाब से। यहाँ पर हमने और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखा, बराबर है, कि कुछ सर्विसेज होती है जिनके लिए गवर्नमेंट ने कोई स्पेसिफिक प्रोविजंस बनाए हैं। तो वो कौन कौन सी सर्विसेज थी? गुड्स के रिलेटेड, जो सेक्शन 13 सब क्लास 3 में आती है, बराबर है, जहाँ रिपेयर मेंटेनेंस का हमने एग्जांपल लिया था। फिर पर्सन के रिलेटेड सेक्शन 13 सब क्लास 3 सब क्लास बी, जो आती है ब्यूटी ट्रीटमेंट वगैरह सर्विसेज, बराबर है, हेल्थ केयर, स्पा वगैरह, जो आएगा 13 सब क्लास बी में। उसके बाद हमने बोला सेक्शन 13 सब क्लास 4, जो इमोबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है। इमोबल प्रॉपर्टी में जो भी सर्विसेज डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमोबल प्रॉपर्टी है, दो सर्विसेज गेट कवर्ड, यानी रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी, होटल अकोमोडेशन, आर्किटेक्ट वगैरह का सर्विसेज, जो 13 सब क्लास 4 में आएगा। उसके बाद हमने बोला 13 सब क्लास 5, जहां पर इवेंट बेस्ड सर्विसेज आता है, जहां पर इवेंट है वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई, एडमिशन टू एंड सर्विसेज एंसिलरी टू द इवेंट, बराबर है, वहां पर आपको बोलना है कि प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी द लोकेशन ऑफ इवेंट। उसके बाद हमने बोला कि कभी कभी जो सर्विसेज है जो आपको मल्टीपल लोकेशन पे देनी पड़ती है, जहां पर एक इंडिया में लोकेशन है और एक इंडिया के बाहर है, तो गवर्नमेंट ने बोला कि भैया वहां ऐसी सिचुएशन अगर आती है पार्शियली इन इंडिया एंड पार्शियली आउटसाइड, तो हम अज्यूम करेंगे टोटली इन इंडिया और टोटल अमाउंट पे टैक्स पे करना पड़ेगा। हमने ये भी बोला ऐसे केस में बेटर होगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट स्प्लिट करो। उसके बाद हमने देखा कि अगर इंडिया में समझो मल्टीपल लोकेशन पे कोई सर्विस दी जा रही है, तो वो स्टेट में जितना जितना प्रोपोर्शनेटली सर्विस दिया, तो प्रोपोर्शनेटली आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद में हमने 13(8) सब क्लॉज देखा, जहां पर हमने बोला इंटरमीडिएट का मेन सर्विस है, बिकॉज उसमें बैंकिंग भी आता है, याच वगैरह का भी आता है, लेकिन इंटरमीडिएट सबसे ज्यादा डिबेटेड डिस्कस है, तो हमने वो सर्विस कवर किया। एजेंट का सर्विस है, वो ब्रोकर का सर्विस है, तो वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ सप्लायर ओनली। वहां पर हमने ये भी डिस्कस किया कि टिपिकली हमारा ये व्यू है कि आपको C+CS पे करना पड़ेगा, बट हमने ये भी डिस्कस किया कि कुछ लोगों ने IGST या इंटरमीडिएट सर्विसेज के केस में आई पे हो सकता है, दैट इज IGST पे हो सकता है, ये भी व्यू लिया है। उसके बाद में हमने कहा कि भैया कुछ और इंपॉर्टेंट सर्विसेज है, जैसा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई हमने बोला इज टिपिकली डेस्टिनेशन, जहां गुड्स जा रहे हैं, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन एग्जैक्टली डायमेट्रिकली अपोजिट गवर्नमेंट ने बोला है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए डेस्टिनेशन, लेकिन पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए जहां पर आप एम्बार्क कर रहे हो, जहां पर आप फ्लाइट से बैठ रहे हो, बराबर है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे आपके सेक्शन 13 के, बराबर है। जहां पर स्पेसिफिक प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाता है, आपको स्पेसिफिक प्रोविजन एप्लीकेबल करना है। जहां स्पेसिफिक प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता है, वहां पर आपको जनरल प्रोविजन एप्लीकेबल करना है, दैट इज सेक्शन 13 सब क्लॉज 2, जो बोलता है रिसिपिएंट लोकेशन इज इंपॉर्टेंट एंड प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी रिसिपिएंट। एम आई क्लियर? परफेक्ट। अभी हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 12 में, जहां पर अगर दोनों इंडिया में रहे, बराबर है, सप्लायर भी इंडिया में, रिसिपिएंट भी इंडिया में, तो यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि टैक्स तो पे करना है, या तो C+CS या तो आए, लेकिन टैक्स तो पे करना है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला है कि टिपिकली अगर रजिस्टर्ड पर्सन को आपने सर्विस दिया, रजिस्टर्ड यानी B2B, जिसको B2B बिजनेस टू बिजनेस बोला जाता है, बराबर है, रजिस्टर्ड पर्सन को दिया सर्विस, तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन, जो रजिस्टर्ड पर्सन का लोकेशन है, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, बराबर है।
और अगर आपने अनरजिस्टर्ड को दिया या आपको पता ही नहीं भैया उसका एड्रेस क्या है, बराबर है, आपको एड्रेस नहीं मिल रहा है बिकॉज आपको किसी ने क्वेरी पूछा और आपको पेटीएम के थ्रू पैसे ट्रांसफर कर दिया, आपको लोकेशन उसका पता नहीं है, तो गवर्नमेंट ने बोला है लोकेशन नहीं मिल रहा है ना आपको, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन ऑफ सप्लायर ओनली, जो आपका खुद का एड्रेस है वही प्लेस ऑफ सप्लाई मानो और जीएसटी पे कर दो। यानी जैसे आप अक्रॉस द काउंटर गुड्स बेचते हो तो वहां तो आप पूछते नहीं ना कि भैया तेरा एड्रेस क्या है, तेरा एड्रेस क्या है, तो बिग बाजार में तो लाइन ही लग जाएगी अगर बिग बाजार वाला सबको एड्रेस पूछता बैठा तो सिमिलरली सर्विस के केस में भी गवर्नमेंट बोलता है अगर आपके पास एड्रेस नहीं है तो आप अज्यूम करो B2C है, यानी अक्रॉस द काउंटर आपने सर्विस दे दिया ऐसा अज्यूम करो और आपको वहां पर C+S पे करना है। एम आई क्लियर? परफेक्ट। अभी आगे बढ़ते हैं। तो टिपिकली सेक्शन 12 अगर आप पढ़ेंगे ना तो उसका मैं समरी आपको बताता हूँ बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम, पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम। सेक्शन 12 में क्या बोला है कि टिपिकली प्लेस ऑफ सप्लाई जो है ये रिसिपिएंट का लोकेशन है, लेकिन कुछ सर्विसेज को गवर्नमेंट ने एक्सक्लूड किया है और उसका मैं आपको रीजन या रैशनल बताता हूँ ताकि आपको याद रहे। तो बेसिकली क्या है कि कुछ स्टेट है गवर्नमेंट इंडिया में जहां पर जिनका मेजर जो एक्टिविटी है, मेजर काम जो है वो है टूरिज्म। बराबर है, तो वो टूरिज्म वाले स्टेट कोई बता सकता है कौन से हैं? कैन एनीबडी टेल मी विच आर द स्टेट जहां टूरिज्म सबसे ज्यादा होता है इंडिया में? केरला, गोवा, कश्मीर, करेक्ट, ये टूरिज्म बेस्ड स्टेट है। इनका सबसे ज्यादा रेवेन्यू कहां से आता है कि जब कोई होटल में आके रहता है तो, बराबर है। तो जो हमने एग्जांपल लिया था, आप पूना से हो, आप पूना से आपको गोवा जाना है, भैया अभी गोवा जाना है मुझे, जैसा लॉकडाउन खत्म हो गया, सब सिचुएशन ठीक हो गया, मेरा वैक्सीनेशन हो गया, मुझे गोवा जाना है, तो आप गोवा चले गए, ताज होटल में रुके, 10,000 आपका बिल आया और आप बोल रहे हो कि भैया मेरा ये ऑफिशियल ट्रिप है, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट में ऑफिशियल ट्रिप में आया हूँ, मुझे कुछ काम था, तो मुझे आप C+S मत दीजिए बिकॉज C+S अगर आपने लगा दिया तो मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लगे मिलेगा, आप मुझे IGST लगा के दीजिए। क्यों? बिकॉज मैं महाराष्ट्र से हूँ। तो अगर वो होटल वाले ने IGST लगा के दिया तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? टैक्स रेवेन्यू कौन से गवर्नमेंट को जाएगा? महाराष्ट्र को जाएगा कि गोवा को जाएगा? अगर IGST लगा दिया तो कोई बता सकता है? अगर IGST लग गया तो महाराष्ट्र, करेक्ट। तो गोवा गवर्नमेंट ने बोला कि भैया हमको अगर IGST लगाना पड़ा बिकॉज हमारा मेजर रेवेन्यू कौन सा है? होटल में लोग आके रुकते हैं, वो मेजर रेवेन्यू, होटल में आके लोग फूड खाना खाते हैं, वो रेवेन्यू है। अगर बिकॉज हमारे यहाँ फैक्ट्री वगैरह बहुत ज्यादा है नहीं, हमारे यहाँ जैसे बैंगलोर में, पूना में IT है ऐसा कुछ है नहीं, हमारा मेन जो एक्टिविटी है टूरिज्म है। तो यहाँ से अगर पूरा होटल वाला जो टैक्स लगा रहा है 18%, वो पूरा अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट को चला जाएगा तो मेरे पास बचेगा क्या? मैं स्टेट गवर्नमेंट काम कैसे करेगा? मेरे पास पैसा ही नहीं आएगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला कि जो होटल अकोमोडेशन का सर्विस है, इमोबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड जो सर्विस है, रेंटिंग का जो सर्विस है, बराबर है, इवन जो आपका रेस्टोरेंट का जो सर्विस है, जो आपका ब्यूटी ट्रीटमेंट, ब्यूटी पार्लर, स्पा, वो जो सर्विसेज है, बराबर है, वो सबके केस में प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी the location where that immovable property is located, the location where that service is performed, the location जहां पर आपको फूड सर्व किया जा रहा है, बराबर है। यानी बेसिकली द लोकेशन वुड बी दैट स्टेट ओनली, यानी जो टूरिज्म स्टेट है उनका जो मेन रेवेन्यू है उनके पास ही रहेगा। अदरवाइज क्या हो जाता है, अगर आप IGST चार्ज करोगे तो महाराष्ट्र के पास या पूरे अदर स्टेट के पास रेवेन्यू चला जाता था और वो केरला, गोवा को कोई रेवेन्यू मिलता ही नहीं, बिकॉज गोवा वाला आदमी थोड़े होटल में जाके रहेगा। गोवा वाला आदमी कभी होटल में जाके रहेगा क्या? वो तो बाहर वाले जाके गोवा में जब रहेंगे तो होटल में रुकेंगे, खाना खाएंगे। गोवा वाला आदमी थोड़ी होटल में जाके खाना खाएगा, कभी वंस इन वाइल ठीक है, लेकिन मेजरली तो घर पे खाएगा ना। यानी कि जो मेन रेवेन्यू है गोवा का वो खत्म ही हो जाएगा अगर IGST लगेगा उस पर। तो इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया स्टेट गवर्नमेंट, GST काउंसिल को, एकदम GST जब ड्राफ्ट हो रहा था लॉ, कि भैया ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा स्टेट का ही कर दो, यानी C+S लगेगा, यानी CGST एंड SGST ऑफ गोवा। तो जो SGST गोवा का है उतना रेवेन्यू मेरे जेब में आएगा, एंड दैट इज द रीजन टिपिकली आप इमोबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज, इमोबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज, इवेंट रिलेटेड सर्विसेज जो है वहां पर जो टैक्स है पूरा का पूरा वो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। एम आई क्लियर? परफेक्ट। तो यहाँ पर और अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो बाकी के कवर करते हैं एंड देन वी विल टेक द सेशन टू द क्लोजर। अभी यहाँ पर किसी ने पूछा है कि भैया SEZ को अगर सर्विस दिया तो क्या टैक्स लगेगा?
इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड लगेगा या उसको इंटरस्टेट माना जाएगा? तो कोई बता सकता है एसीजेड को सर्विस दिया तो क्या टैक्स लगेगा? कैन एनीबडी से? आईजीएसटी लगेगा क्या C+S लगेगा? यहां पर ये कंफ्यूजन हो जाएगा कि स्पेसिफिक रूल कौन सा है, बराबर है? व्हाट इज द स्पेसिफिक रूल? तो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू गॉट इट राइट, इट वुड बी इंटरस्टेट, बिकॉज सेक्शन 7 में स्पेसिफिकली बोला गया है, इट इज स्पेसिफिकली मेंशन अंडर सेक्शन 7 कि भैया टू एंड बाय अगर एसीजेड है तो स्पेसिफिकली इट विल बी ऑलवेज कंसिडर्ड एज इंटरस्टेट। लेकिन यहाँ पर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू हैव कंसिडर दैट क्लॉज, बट आप यहाँ पर ये भी देखो सेक्शन 7 में जो प्रोविजन है, इट सेज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 12। तो यहाँ पर ये भी आप ध्यान रखो कि ये जो प्रोविजन है इट इज सब्जेक्ट टू 12। तो यहाँ पर कोई ये भी आर्गुमेंट ले सकता है कि भैया कि ये जो सेक्शन है ये सब्जेक्ट टू अगर है तो प्लेस ऑफ सप्लाई इंट्रास्टेट हो सकता है क्या? तो हमारा मानना है कि नहीं। अगर आप सेक्शन 7 सब क्लॉज 5 पढ़ोगे तो ये स्पेसिफिकली इट इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी सब क्लॉजेस, बराबर है, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी प्लेस ऑफ सप्लाई। इट ओनली सेज कि सब when you are providing services to or when the service is provided by SEZ, it will always be interstate, correct? तो SEZ को एक स्पेसिफिक उन्होंने कैटेगरी में डाल दिया है कि भैया इसको जब भी कोई सर्विस दी जाएगी तो इट विल बी ऑलवेज IGST, फुल स्टॉप, करेक्ट? तो ये स्पेसिफिक प्रोविजन है, दिस विल ओवरराइड द जेनेरिक प्रोविजन। तो विद दिस फ्रेंड वी आर ऑलमोस्ट थ्रू विथ आवर सेशन फॉर द डे। ये लगभग जो पॉइंट हमने कवर कर लिए है। ऑब्वियसली देयर आर मेनी अदर सब क्लॉजेस, लेकिन मुझे लगता है कि जो इंपॉर्टेंट क्रिटिकल सब क्लॉजेस है वो हमने कवर कर लिए है। दिस सेक्शन 12, 13, 10, 11 ये काफी क्रिटिकल है एंड इसमें बहुत पॉसिबिलिटी होती है एरर होने की। ये एरर होने की कोई पॉसिबिलिटी है बिकॉज सेक्शन 10 में 5 सब क्लॉजेस है, सेक्शन 11 में 1 सब क्लॉज है, सेक्शन 12 में 14 सब क्लॉजेस है और सेक्शन 13 में लगभग 12, यानी कि 14 + 12 कितना हो गया आपका 26 और ये 6 32। तो 32 सब क्लॉजेस, 32 पॉसिबिलिटीज आती है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई में आपको बहुत ध्यान से प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना पड़ेगा, नाही तो आपल्या जसं मराठी म्हणतो 32च्या 32 आता त्या टॅक्स पेअरचे पडू जाऊ शकतात, बरोबर? क्योंकि 32 पॉसिबिलिटीज है। इसके लिए आपको ये बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। कुछ और भी मुझे लगता है कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछे वेडिंग प्लानर वगैरह के, लेकिन मुझे लगता है कि फॉर द टाइम बीइंग पॉजिटिव ऑफ टाइम की वजह से आज तो नहीं उसके आंसर करेंगे, कल जब शुरुआत करेंगे सेशन की तो हम यही जो आपके जो बचे हुए क्वेश्चन है उसके साथ करेंगे। तो विद दिस वी आर थ्रू विथ आवर सेशन फॉर द डे। अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो प्लीज फील फ्री टू मैसेज देम इन द चैट बॉक्स। मैं राजेश को रिक्वेस्ट करूंगा, राजेश जो क्वेश्चन है वो आप मुझे ईमेल अगर आप कर पाओगे दैट वुड बी वंडरफुल। नहीं तो वैसे भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन only one question was there that is related to event. So we have specifically mentioned the location of the event will be the place of supply. So irrelevant where the our actually customer located. Perfect. अच्छा वही क्वेश्चन है क्या? तो ठीक है। No, that is one. That is only one question. Perfect. Please go ahead. Not a problem, sir. Super. Thank you. Thanks very much, Rajesh, and thank you the entire all the participants. I think you were very actively participating in the session. That's the reason I think this session was more memorable, like the yesterday one session. तो कल भी हम कंटिन्यू करेंगे। एक्सपोर्ट रिलेटेड का जो स्टफ है मुझे लगता है आधे घंटे में, हाफ एन आवर में कवर हो जाना चाहिए, इंक्लूडिंग जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है, दोनों हम चीजें कवर करेंगे। और उसके बाद में रिटर्न रिलेटेड या जो बाकी के टॉपिक है उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। So with this we are through with our session. So thank you all. Thanks for joining. Bye. Friends, I think we have really enjoyed the session place of supply. Many of us never thought of ki it is so complicated, but as you seen in other part, ki if you have not availed credit or wrongly availed credit, you have to reverse the input tax credit with interest and penalty. But in case of place of supply, many companies have not deposited tax at all under intermediary services or under 13(3), that is repairing or any other process on the goods made available by the customer. Many examples are there, but in my case, one client approached me. He was into scientific research activity.
He is researching on the goods supplied by the customer or made available by the customer. He was very clear. I am into export. My customer are located USA. I am doing any research activity. I am not into taxation. But when department approached, department recovered all the tax with interest and penalty. Nutshell, what we mean to say is there are so many disputes under place of supply. Intermediary services is again one of the complicated topic. Many companies thinks they are earning commission. They name it anything, they name anything, incentive or whatever they name it. But if it is in the nature of agency business, GST will be applicable. Definitely, there is a doubt whether to apply CGST or IGST, but as rightly elaborated by Preetham, CGST and SGST will be payable. I think there is no advance ruling till date on this point, but definitely it is not a clear whether residual entry will be applicable or both are supplier is located in Pune and recipient is also located in place of supply is in Pune. So CGST and SGST should be leviable. I really thanks all of you for your active participation. Because of audience only the sessions will become interesting and live. So we feel our all sessions are live because of your interaction. If any suggestion is there, you can WhatsApp me. Definitely we will go ahead. If anyone want to join as a volunteer for helping me in the other sessions or guiding me which sessions we should conduct for the benefit of students, we will definitely go ahead with that after discussion with our team. Thanks Preetham for your time and wholeheartedly elaborating all the queries and session. Thank you friends. Thanks all. Yeah. With this I am ending the session.